एक फटाफट आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में बता दूं अनअकैडमी के। वी नो अनअकैडमी ऑफर्स द प्लस एंड द आइकॉनिक। आइकॉनिक में कुछ एडवांटेजेस हैं। एक तो जैसे लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म है आपका, आपको 1-on-1 लाइव मेंटरिंग मिल सकती है। आपके कोई डाउट्स होते हैं, यू कैन आस्क योर मेंटर। इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज मिलती है, विच मीन्स यू कैन गिव योर टेस्ट एंड उसको चेक करके आपको पूरा बताया जाएगा व्हाट आर द वीकनेसेस एक्सेट्रा। द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन यू कैन यूज माई कोड तुलिसर। आपको सीए फाइनल ग्रुप 1 की अलग मिल जाएगी, ग्रुप 2 की अलग मिल रही है, प्लस यू आर ऑल्सो गेटिंग द फाइनल कॉम्बो फॉर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। So get a subscription today before the price hike comes. So we continue our discussion of ICI case studies from the module. अभी चैप्टर हम करने जा रहे हैं कैपिटल गेन्स। तो ये एक वीडियो मैंने पहले बनाया which was from basics to business and profession. This is the second video. The idea of course is हम सारे ICI के केस स्टडीज एक ही बार में मॉड्यूल से वीडियोस में डिस्कस कर रहे हैं। Now this is capital gains and of course this is also a very litigated particular chapter. यहाँ पर बहुत सारे interpretations आएंगे, खासकर exemptions के केस में। Now this is the name Seshassi Steels Private Limited versus ACIT, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। क्या कहती है? Can transaction which enables the enjoyment of immovable property be considered as enjoyment as a purported owner thereof for being treated as transfer of a capital asset under 247(6) and levy of tax on capital gains arising thereon? पहली बात देखो, इतना मुश्किल सुनने में लग रहा है नहीं। इफ आई गो एंड चेक सेक्शन 247(6), ये रहा 247 और हम 6 देखें क्या बोल रहा है। एनी ट्रांजैक्शन whether by way of becoming a member of or acquiring shares in a cooperative society, company or other association, or by way of any agreement or any arrangement or in any other manner whatsoever, which has the effect of transferring or enabling the enjoyment of, अभी ये एक लाइन बन गई, transferring or enabling the enjoyment of any immovable property। enabling the enjoyment of के ऊपर यो ने क्या बोला? फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको लीज पे दे दिया अपना घर और मैंने आपको एक तरीके से इनेबलिंग द एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी दे दी। अगर मैंने आपको इनेबलिंग द एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी दिया, हैव आई ट्रांसफर्ड द प्रॉपर्टी टू यू एज एन ओनर? नो सर। सो कैन वी रीड द वर्ड्स एनेबलिंग द एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी डिफरेंटली फ्रॉम ट्रांसफर? क्या उसको सिंगली स्टैंड अलोन अलग से पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। सो जहां पर भी बात हो रही है ट्रांसफर होगा, इट हैज टू बी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, यानी ट्रांसफर का राइट उसमें खत्म होगा तो ही ट्रांसफर होगा ना। सो एनेबलिंग द एंजॉयमेंट ऑफ कैन नॉट बी रेड टू बी एनीथिंग अदर देन ट्रांसफर। इट कुड बी बाय पावर ऑफ अटॉर्नी, हम नहीं कह रहे रजिस्ट्रेशन होना जरूरी। सो इट इज एनी ट्रांजैक्शन विच हैज द इफेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग और enabling the enjoyment of any immovable property would come within the purview of 247(6), appears to bring within its tax net a de facto transfer of immovable property. The expression enabling the enjoyment of takes color from the earlier expression transferring। मैंने बोला ना, उसको अकेले नहीं पढ़ सकते, transferring is the important word here, so that it is clear that any transaction which enables the enjoyment of immovable property must be enjoyment as a purported owner thereof। as a lessee नहीं हो सकता, वो लीज जितने मर्जी लॉन्ग टर्म की हो। The idea is to bring within the tax net transactions where though the title may not be transferred in law, there in substance is a transfer of title in fact। In this case, assessee's right, assessee मतलब ट्रांसफरर की, in the immovable property were extinguished on the receipt of the last check। यानी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा था कि जैसे ही लास्ट चेक आया ट्रांसफर की राइट खत्म हो गई। Further, the compromise deed could be stated to be a transaction which had the effect of transferring the immovable property in question. Accordingly, the transaction fell under 247(2) and 6, hence it is a transfer and the capital gains liability would be attracted। वो इस केस में है, पर अगर आप लीज की बात करेंगे, यानी इस केस में शायद वो जो वर्डिंग्स थी वो ऐसी थी कि जैसे जैसे पैसा आता जाएगा और लास्ट आने पे ऑटोमेटिकली मेरी एज अ ट्रांसफर राइट खत्म हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज हो गया होगा, है ना, तो वो डीड बनी होगी। तो उस केस में कहता है बिकॉज एज पर द लास्ट चेक रिसीट ओनरशिप ऑफ द ट्रांसफर सीजेस, इस वजह से हम इसको 247(6) में डाल रहे हैं।
सो ये पॉइंट आई थिंक विल बी सिंपल, बट कल को पेपर में आ गया कि ये जजमेंट आई थी भी एनेबलिंग द एंजॉयमेंट ऑफ, उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, इस वजह से ये केस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन बेटा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो कंपल्सरी एक्विजिशन क्या होता है? कंपल्सरी एक्विजिशन इज वेयर द गवर्नमेंट कंपल्सरी एक्वायर्स, फ्री विल नहीं है। सेल में फ्री विल होता है। एंड वी नो कंपल्सरी एक्विजिशन इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट एज पर द लैंड एक्विजिशन एक्ट, नई वाली जो है। अब यहां पर पॉइंट क्या पूछा जा रहा है? कहते हैं सोचो अगर एक आपकी जमीन कंपल्सरी एक्वायर होगी और गवर्नमेंट ने कॉम्पनसेशन 50 लाख फिक्स कर दी। अब बाद में आपने बैठ के गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट कर लिया कि सुनिए मैं कोर्ट में केस करूंगा, कोई फायदा उस बात का, आप ही थोड़ी बढ़ा दीजिए, और सेटलमेंट हो गई, 60 लाख में फैसला हो गया। अभी असेसिंग ऑफिसर का दिमाग देखिए, एंड आई एम टेलिंग यू दीज आर सम क्रिएटिव थॉट्स। ही नाउ सेज दैट बिकॉज आपने नेगोशिएट कर लिया, इसमें फ्री विल आ गया है, और अभी जो है इसको मैं कहता है वॉलंटरी सेल बना रहा हूं, और मैं आपको कंपल्सरी एक्विजिशन में जो 1037 में बेनिफिट मिलता है वो नहीं दूंगा। रिमेंबर कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, अर्बन एरिया वाला इंडिविजुअल और एचयूएफ ने अगर 2 साल तक यूज करा है फॉर एग्रीकल्चर, तो वो कंपल्सरी एक्विजिशन एग्जेम्प्ट हो जाता है। पर यहां पर वो कहता है मैं इसको सेल बना रहा हूं और मैं एग्जेम्पशन डिनाई कर रहा हूं। चलिए मान लेते हैं आपने ऐसा सोच लिया, पर ऐसा जज साहब नहीं माने, तो इस नाम को भी हम याद कर लेंगे एंड मुद्दा क्या है वो समझेंगे। सो वेयर द प्रोसीडिंग्स वर इनिशिएटेड अंडर द ओल्ड लैंड एक्विजिशन एक्ट, even if compensation is negotiated and fixed, it would continue to remain as compulsory acquisition. Merely because the compensation amount is agreed upon, the character of acquisition will not change from compulsory acquisition to voluntary sale. Interesting questions. I like this creativity. This basically idea क्या है? एक ही लॉ है। As an assessee मैं, या as an assessee CA मैं, और assessee का एक ही मकसद है to try and reduce the tax, और एओ का एक ही मकसद है टू ट्राई एंड इंक्रीज द टैक्स, और इसी झगड़े में इंटरप्रिटेशनल इश्यूज आ जाते हैं, और ये आते रहेंगे नो मैटर हाउ वेल वी राइट द लॉ। एक एक लाइन को दो दो तरीके से इंटरप्रेट करना तो हम सबको आता ही है। अपने दोस्तों के साथ जब बातें करते हो आप देख लो कैसे वो बातों को ट्विस्ट कर दिया जाता है बेसिकली इंटरप्रिटेशन की वजह से। सो यहां पर तो आएगा ही ना। क्या डेप्रिसिएबल कैपिटल एसेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो सकता है? हमें यह पता है डेप्रिसिएबल कैपिटल एसेट का गेन या लॉस शॉर्ट टर्म होता है, ऐसा सेक्शन 50 में लिख दिया। द पॉइंट इज सेक्शन 50 सेज दैट इन केस ऑफ डेप्रिसिएबल कैपिटल एसेट द गेन्स और लॉस शैल बी शॉर्ट टर्म। इट डज नॉट से दैट द एसेट इज शॉर्ट टर्म। वी नो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट की डेफिनेशन दी है अपने को 242A में, और वहां लिखा है पीरियड ऑफ होल्डिंग। अगर लेस देन और इक्वल टू लैंड एंड बिल्डिंग के केस में 24 महीने है तो शॉर्ट टर्म है, मोर देन 24 है तो लॉन्ग टर्म। सो कैन अ डेप्रिसिएबल एसेट हेल्ड फॉर मोर देन दिस पीरियड बी अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट? नो, व्हाई इज इट रेलेवेंट? देखो अगर मैं चलूं यहां पर, व्हेन वी लुक एट सेक्शन 54 EC एंड वी रीड द वर्डिंग्स, पढ़ो जरा। वेयर द कैपिटल गेन्स अराइजेस फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, क्या लिखा? वेयर द कैपिटल गेन्स arises from the transfer of a long-term capital asset. The wordings are not where the long-term capital gains are invested. The wordings are where the capital gains on the transfer of a long-term capital asset. So अगर हम ये मान लें कि depreciable asset long-term capital asset है because of period of holding, then the gains could be short-term. But if invested in 54 EC, क्या हमें ये benefit of EC मिल जाएगा? And we all know yes. And ये नाम हमें CIT वर्सेस VS डेम्पो कंपनी को याद कर लेना है, ये तीनों नाम याद करने। इन केस वेयर अ डेप्रिसिएबल एसेट हेल्ड फॉर मोर देन 24 मंथ्स इज ट्रांसफर्ड कैन बेनिफिट ऑफ 54 EC बी क्लेम। पढ़ते हैं। द assessee cannot be denied the exemption under EC because there is nothing in section 50 to suggest that the fiction created therein is not restricted to only sections 48 and 49. Secondly, fiction created by legislature has to be confined for the purpose for which it is created, which is to say that the gains will be short term. Thirdly, section 54 EC does not make any distinction between depreciable and non-depreciable,
for the purpose of reinvestment of capital gains in the long-term specified asset for availing exemption. So I like these judgments for a reason. You know, exemptions दी गई थी प्रोत्साहित करने के लिए, इंसेंटिवाइज करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स को, तो उनको लिबरली पढ़ना चाहिए, लिटरली नहीं पढ़ना चाहिए. सो दिस इज व्हाट इज गुड. these interpretations by the courts are in tune with that thought. So further, section EC 54 EC specifically provides that capital gain arising on the transfer of long-term capital asset is invested or deposited in long-term specified asset, the assessee shall not be subject to capital gains to that extent. Therefore, exemption under EC cannot be denied to the assessee on account of the fiction created in section 50. Fiber Boards Private Limited versus CIT, again Supreme Court. If you notice, a lot of Supreme Court judgments coming here. अब यहां क्या पूछ रहा है? देखो, हमें ये पता है सारी exemptions में आपको पैसा लगा के एसेट खरीदना है विद इन टाइम पीरियड ऑफ 2 years और 3 years एज द केस में भी. तो अगर मैंने आज अपना सारा कैपिटल गेन्स एडवांस दे दिया, भाई मैंने अगर सपोज करो 54 में लैंड का एडवांस दे दिया और बाकी पैसा अपनी जेब से लगा दिया, भाई जो कैपिटल गेन्स हो रहा था वो था ही इतना कि एडवांस ही हो रहा था उसमें से पूरा. भाई कैपिटल गेन्स मेरा 30 लाख हो रहा है, एडवांस बन रहा था 40 लाख का, तो मैंने पूरा 30 लाख एडवांस दे दिया. मुझे 54 में कैपिटल गेन्स का अमाउंट स्पेंड करना, तो मुझे पूरा एग्जेम्पशन मिल जाएगा. अभी एओ को फिर यहां पर इंटरप्रिटेशन इशू आ गया, कहता आपको कैपिटल गेन्स जो इन्वेस्ट करना है इन बाइंग द न्यू लैंड खरीदना, या न्यू रेजिडेंशियल हाउस की बात करें अगर 54 में, तो अगर आपने वो खरीदने में पैसा लगा दिया एडवांस का ही, तो फिर बाकी आपने तो लगाया नहीं इन परचेजिंग द लैंड, तो देयरफॉर रेजिडेंशियल हाउस, तो देयरफॉर आई एम गोइंग टू डिनाई द एग्जेम्पशन टू यू. नो, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ सच थॉट प्रोसेसेस, बट ऑफ कोर्स ईच the AOs will have their own limitations, क्योंकि उनको अपने टारगेट्स भी कंप्लीट करने ना बेटा, उनके पास भी टारगेट होते हैं भी इतना अगर नहीं करा है आपने रेवेन्यू जनरेट, तो फिर उनसे भी पूछताछ होता है. तो शायद उस चक्कर में इंटरप्रिटेशंस में थोड़ा सा कारीगरी क्रिएटिविटी आ जाती है, पर इसको भी हम याद करेंगे. अगेन इट्स अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट. कैन एडवांस गिवन फॉर परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी टेंट अमाउंट to utilization of capital gains for purchase and acquisition of new machinery or plant or claim of exemption under 54G. तो बेसिकली बात हो रही है क्या एडवांस से यूटिलाइजेशन पूरा हो रहा है. तो इट सेज फॉर द पर्पस ऑफ availing exemption, all that was required was for the assessee to utilize the amount of capital gains for purchase and acquisition of new machinery or plant. Since the entire amount of capital gains in this case was utilized by way of advance, the assessee is entitled to avail exemption under 54G. अब आते हैं, अगर आपके पास प्रॉपर्टी विल से आ रही है, पापा ने आपके नाम छोड़ दी या किसी ने भी आपके नाम छोड़ी, या गिफ्ट से आ रही, अब ये प्रॉपर्टी प्रीवियस ओनर के नाम रजिस्टर्ड है, अरे मेरे को अपने नाम रजिस्टर कराना है तो मैं स्टैंप ड्यूटी पे करूंगा, टाइटल उसका करेक्ट करूंगा. अगर प्रीवियस ओनर ने, सपोज पापा ने कोई लोन लिया हुआ था और मेरे पास प्रॉपर्टी बाय विल आ गई है, अभी मेरा टाइटल, रिमेंबर नो वन कैन ट्रांसफर अ टाइटल बेटर देन द वन दे ओन. सो अगर पापा का टाइटल वो सब्जेक्ट टू अलियन, तो मेरा टाइटल इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू अलियन, है कि नहीं. तो मुझे बताओ, अगर मैं वो लोन रीपे करता हूं तो क्या वो मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में आएगा, रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन बाय द प्रीवियस ओनर. ओ यस, वी हैव डन केसेस ऑन इट. सो हम लोग क्या कह रहे हैं कि अगर आपने अपना टाइटल परफेक्ट करने के लिए कुछ भी खर्चा करा, इट हैज टू बी पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. सो अगर मैं कह रहा हूं कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर जा रहा है और पापा ने 10 लाख का खरीदा था, तो मैं 10 लाख तो लूंगा ही लूंगा कॉस्ट, प्लस मैंने जो 2 लाख लगाए अपने नाम रजिस्टर कराने के लिए, वो भी तो आएगा, तो 12 लाख की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी. सपोज पापा का 10 लाख था, मैं कह रहा हूं प्रीवियस ओनर पापा ने 10 लाख का सपोज खरीदा, आप बोलोगे सर 10 लाख कहां से आया, एजम्पशन, और 2 लाख मैंने आज जब मेरे पास बिल से आया, मैंने अपने नाम रजिस्टर करा लिया, तो मेरी कॉस्ट कितनी होगी, 49(1) वाली, प्लस जो मैंने आज खर्चा किया. कैन द अमाउंट इनकर्ड बाय द असेसी towards perfecting title of property acquired through will for making further sale be included in the cost of acquisition for computing capital gains? The answer is yes. Had to be regarded as cost of acquisition. देखिए, मंजुला जे शाह वाला जजमेंट तो हम बहुत बार कर चुके हैं, मंजुला जे शाह वाला जजमेंट हम बहुत बार कर चुके हैं, बट एक बात इसको अगर एक्सप्लेन करना पड़े प्रैक्टिकली, हम पेपर में क्या करते हैं. सो टुडे इफ इट इज एक्स एंड वी से प्रीवियस ओनर was, let's say पापा, हम x का पीरियड ऑफ होल्डिंग फ्रॉम प्रीवियस ओनर लेते हैं बिकॉज ऑफ एक्सप्लेनेशन बी.
टू सेक्शन 242A, यानी मैं अपने लॉजिक से कोई नहीं ले रहा हूं। पीरियड ऑफ होल्डिंग इज डिफाइंड अंडर 242A टू मीन फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन से, बट उसका एक एक्सेप्शन दे दिया भाई, अगर आपके पास 49(1) के रास्ते से आया, इफ यू एक्वायर्ड इट इन 49(1), योर पीरियड ऑफ होल्डिंग विल इंक्लूड द पीरियड ऑफ प्रीवियस ओनर। इस वजह से हम पीरियड पीछे का लेते हैं। सिमिलरली बेटा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपके पास विल से आया तो आपकी कॉस्ट एक्चुअली निल है, बट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एज पर 49(1) विल इंक्लूड कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर प्लस ऑफ कोर्स अगर आपने कोई टाइटल के लिए अभी पिछले केस में पढ़ा आपने खर्चा किया। लेकिन बेटा इंडेक्सेशन जो है वो एक्सप्लेनेशन टू 48 में दिया है, और वहां लिखा है इंडेक्स फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय इंडेक्स फॉर द ईयर ऑफ एक्विजिशन। और झगड़ा यहां से शुरू हुआ कि एक्विजिशन तो यहां की है, तो क्या इंडेक्स भी प्रीवियस ओनर का लेंगे? नहीं ले सकते। और सारे जजेस ने बोला ना, आप कॉस्ट प्रीवियस ओनर की ले रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस, आप पीरियड प्रीवियस ओनर का ले रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस, बट इंडेक्सेशन में कहीं एक्सेप्शन नहीं दिया। अब गवर्नमेंट ने, जब लेजिस्लेचर ने इन 2 सेक्शंस में जाके एक्सेप्शन दिया था तो यहां भी दे सकते थे, नहीं दिया, इसलिए इंडेक्स तो आप यहीं का लेंगे। पर मंजुला जे शाह की जजमेंट में थोड़ा सा क्रिएटिविटी और यूज हो गया, और क्या बोला गया कि सर जब आपने ये बोल दिया कि माय पीरियड ऑफ होल्डिंग विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, देन इट इज डीम्ड टू बी एक्वायर्ड हियर, डीम्ड एक्वायर्ड हियर। और अगर डीम्ड एक्वायर्ड ये है तो फिर ये वाला साल भी तो वही वाला आना चाहिए ना। तो मंजुला जे शाह जी ने बोला, इस जजमेंट में जज साहब ने बोला, सॉरी, द प्रीवियस ओनर जिस समय फर्स्ट हेल्ड है, नॉट इन द ईयर इन विच द असेसी बिकेम द ओनर, बट इन द पेपर्स हम करेंगे यही, क्योंकि आईसीआई यहीं का इंडेक्स लेते हैं। और प्रीवियस ओनर वाला जो मंजुला जे शाह का जजमेंट है उसका रेफरेंस देंगे, फिर सर हमें पता है मंजुला जे शाह वाला प्रीवियस ओनर के, वहां से आप इंडेक्स कर सकते हैं, बट जनरली हम नहीं करते हैं एज पर आईसीआई एज वेल। प्रैक्टिकली तो लोग कर ही रहे हैं। ओके, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। शक्ति मेटल्स डिपो वर्सेस सीआईटी, क्या बोल रहा हूं? कहता सर आपके ब्लॉक में लेट्स से ओपनिंग WDV ऑफ योर ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ लेट्स से 10 lakhs एंड इसमें 3 एसेट्स। अब वो कहता है इनमें से 3 में से 2 एसेट्स पिछले 2 साल से नॉट यूज फॉर बिजनेस, नॉट यूज फॉर बिजनेस। अब क्रिएटिविटी देखिए, हमें पता अगर हम ये बेच देते हैं, इनमें से सपोज एक भी बेच दिया, लेट से 15 लाख का बेच दिया, आपका ब्लॉक नील हो गया, 5 लाख का आपका कैपिटल गेन्स आया, और आपको पता है ये 50 के हिसाब से शॉर्ट टर्म हो जाएगा, है ना। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स का रेट तो वही होता है, अगर हाईएस्ट स्लैब है तो 30% भी हो जाएगा, लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म हो जाए तो आप 20% भी ले सकते हैं। अब क्रिएटिविटी क्या हो रही है कि आप कह रहे हैं कि ये 2 साल से यूज नहीं है बिजनेस के लिए, देयरफॉर ये डेप्रिसिएबल एसेट नहीं है क्योंकि इट इज नॉट यूज फॉर बिजनेस, देयरफॉर ये नॉन डेप्रिसिएबल हो गया। और क्योंकि ये 24 महीने से ज्यादा है तो आपका कैपिटल गेन्स 50 के नहीं 48 में आना चाहिए, और आपको इसका इंडेक्सेशन का फायदा भी देना चाहिए अपने को कॉस्ट का। आप लोग कहानी समझ रहे हैं? तो जज साहब ने क्या बोला, देखो, वो डेप्रिसिएबल एसेट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट्स ऑन विच डेप्रिसिएशन इज बीइंग अलाउड सिंस इट्स एक्विजिशन चेंज इट्स character if it is not used for business for the last 2 years to the effect that the gains arising from the transfer can be considered as long term gains instead of short term। पहले ना whenever there is a case, समझो पहले तो मुद्दा ढूंढो, लड़े क्यों, ऐसा क्या नुकसान या फायदा हो रहा था, कौन लड़ा। अगर एसएससी लड़ा होगा तो उसका कोई फायदा हो रहा होगा, अगर एओ लड़ा होगा तो उसका हो रहा होगा। तो यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाई द क्वेश्चन वाज रेज्ड एंड देन अंडरस्टैंड व्हाट द एनालिसिस कम्स। तो यहां पर आ गया डेप्रिसिएबल एसेट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द ब्लॉक विद इन द मीनिंग would not cease to be a part of the block so long as the assessee continued the business. In this case, the building forming part of the block would retain its character as such even if 1 or 2 of the assets in the block were not used in the last years. Consequently, the profits and loss would still be short-term capital gain. Now this is, मैंने ये वाला नाम याद कराया हुआ है, आई थिंक दैट इज द नेम यू कैन रिमेंबर, आनंदा बसप्पा, इट इज इजियर टू रिमेंबर। यहां पर क्या पूछा गया कि अगर आपने 2 प्लॉट्स खरीदे या 2 बिल्डिंग्स खरीदी विच आर एडजेसेंट टू ईच अदर, यानी
मैं कह रहा हूं प्लॉट नंबर 510 एंड प्लॉट नंबर 511, 2 बिल्डिंग्स खरीद ली, और उसके बाद इसको आपने दीवार को तोड़ के इसको एक बिल्डिंग बना दिया. सो विल दैट नाउ बी 1 यूनिट और विल इट बी 2 प्रॉपर्टीज? बिकॉज रिमेंबर 54 में आपको एग्जेम्पशन सिर्फ एक घर की मिलती है. हाँ मुझे पता है 2 करोड़ से कम हो तो जिंदगी में एक बार 2 घर की मिल जाएगी, पर हम बात कर रहे हैं बाकी सारे केसेस में भी. तो ये आनंदा बस्सापा ने बोला द असेसी इज इंटाइटल्ड टू इन्वेस्ट इन बोथ द फ्लैट्स परचेज बाय हिम सिंस दे वर एडजेसेंट टू ईच अदर एंड हैड अ कॉमन मीटिंग पॉइंट, thus मेकिंग इट अ सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट. सो ये इंपॉर्टेंट हो गया. नाउ सीआईटी वर्सेस गुरनाम सिंह, अगेन यहां पर क्या बोला गया? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें आ रही हैं कि क्या जब मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा हूं, सुनो, अगर मैं अपना कोई भी एग्रीकल्चर लैंड बेच रहा हूं, अर्बन लैंड, और जो मैं आगे अर्बन लैंड खरीद रहा हूं अपने नाम के साथ अपने बेटे का नाम जोड़ देता हूं, जॉइंट ओनरशिप, पैसा मैंने खर्चा. जो मेरा पुराना लैंड बिका, कैपिटल गेन्स उसका था, मैंने बेटे के नाम जॉइंटली ऐड कर दिया. या कई जगह मिलेगा कि मैंने ज्वेलरी बेची और जो बिल्डिंग खरीदी उस ज्वेलरी के कैपिटल गेन्स में से नेट फुल वैल्यू सारा लगा दिया. 54F के लिए मैंने बिल्डिंग अपनी वाइफ के नाम खरीद ली. भाई देखो, एक तो घर में ही है ना बात. अगर मैं अपने नाम बिल्डिंग खरीदता और वाइफ को गिफ्ट करता, कोई टैक्सेबिलिटी तो हो ही नहीं रही थी. मेरे हाथ में 47(3) में एग्जेम्प्ट हो जाता. वाइफ रिलेटिव है तो 56(2)(10) नहीं लगता. तो क्या मुझे वाइफ के नाम खरीदने में एग्जेम्पशन 54F की डिनाई हो जाएगी? अब एओ क्या बोलेगा? एओ बोलेगा सेक्शन कहता है तुझे अपने नाम खरीदना है ना. पर जब हम सेक्शन पढ़ते हैं, पता क्या लिखा वहां? लिखा है कि आपको पैसा लगाना है कैपिटल गेन्स का. ये नहीं लिखा कि अपने नाम खरीदना है. और उसी पे इंटरप्रिटेशंस आ रहे हैं. देखो, कैन एग्जेम्पशन अंडर 54B बी डिनाइड सोली ऑन द ग्राउंड दैट द न्यू एग्रीकल्चर लैंड परचेज इज नॉट होली ओन्ड by the assessee as the assessee's son is a co-owner as per sale deed. तो अब इसमें क्या बोल रहा है? देखो, agricultural land sold belong to the assessee and the sale proceeds were also used for purchasing agricultural land. The possession of the land was also taken by the assessee merely because the assessee's son was shown as the co-owner cannot be denied. So what you have to keep in mind is ये exemptions है, ये फायदा देने के लिए करी गई है. सो इनको लिबरली पढ़ो जरा, लिटरली नहीं पढ़ना. सिमिलरली, कैन एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54F बी डिनाइड सोली ऑन द ग्राउंड दैट द न्यू रेजिडेंशियल हाउस इज परचेज बाय द असेसी एक्सक्लूसिवली इन द नेम ऑफ हिज वाइफ? So he says the new residential house need not necessarily be purchased in his own name, nor is it necessary that it should be purchased exclusively in his name. Having regard to the rule of purposive construction and the object of enactment of section 54F, the assessee is entitled to claim exemption in respect of utilization of sale proceeds of the capital gains for investment in residential house property in the name of his wife. तो जज साहब ने भी ऐसा कुछ करा होगा, वाइफ को खुश रखना जरूरी है to keep the wife happy, so maybe because of that these judgments are coming. हालांकि if you actually ask me, the property should be purchased in the assessee's own name. बट अभी के लिए हम इसको केस स्पेसिफिक रखेंगे. माइनर चाइल्ड के नाम खरीदा नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ वाइफ के नाम खरीदा, तो इसको केस स्पेसिफिक रखो. ओके. इन केस ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड इन द जॉइंट नेम्स, कैन एग्जेम्पशन अंडर 54F बी फुली अलाउड टू द को ओनर हु हैज पेड द होल ऑफ द परचेज कंसिडरेशन, और विल इट बी रिस्ट्रिक्टेड टू हिज शेयर? अब सपोज एक्स को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया 70 लाख का. Let's say this is on land. उसका नेट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेट्स से 200 lakhs है. एक्स ने क्या किया? एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद लिया फॉर 200 lakhs. पर उसने ये प्रॉपर्टी जो खरीदा, क्या करा उसने? जॉइंट नेम में अपने और अपने सन के नेम पे खरीद लिया, और 50% शेयर उसका है, 50% सन का है. अरे अब कैपिटल गेन्स एग्जेम्पशन जब यहां निकालेंगे, पूरा 200 यूज हो गया, तो असेसी ने 70 लाख रुपए एग्जेम्पशन क्लेम कर लिया. अब एओ क्या कहता है ना, तेरा अगले न्यू घर में, नया जो घर तूने खरीदा उसमें 50% शेयर है, तो मैं तेरे को 50% अलाउ करूंगा. अब इसमें तो कोई लॉजिक भी नहीं है ना. अरे अमाउंट इतना है तो इतना ही इन्वेस्ट करोगे. अब वो 50% शेयर मिला या 20% मिला, उससे क्या लेना देना? यही जज साहब ने भी बोला.
54F mandates that the house should be purchased by the assessee, but it does not stipulate that the house should be purchased only in the name of the assessee. In this case, the house was purchased by the assessee in his name, and his wife's name was also included additionally. Therefore, the conditions stipulated in 54F stand fulfilled, and the entire exemption claimed in respect of purchase price shall be allowed. So I think this is logical as well, and like I said, liberal interpretation ho raha. Now, can 54F be denied to an assessee in respect of investment made in construction of a residential house property on the ground that the construction was not completed within 3 years? अच्छा देखो, अब 2 बातें करेंगे. हमें 3 साल में कंप्लीट करना है, ये तो पता है, और अगर नहीं कंप्लीट हुआ तो एग्जाम्पशन विड्रॉ तो होना चाहिए. परंतु बेटा, अगर यार 95% कंप्लीट हो गया, थोड़ा बहुत रिपेयर चल रहा है अंदर, पहली बात एओ को पता कैसे चला, बड़ा ध्यान रखना है एक तो, है ना. असेसी घर के अंदर रह रहा है, अभी व्हाइट वॉश चल रहा है, थोड़े कारीगर काम कर रहे हैं, और एओ को पता चल गया ये बात, वो कहता मैं एग्जाम्पशन नहीं दूंगा तेरे को. इज दैट राइट? सो टेक्निकली इज द हाउस कंप्लीटेड. सो अभी गवर्नमेंट जज साहब क्या बोल रहे हैं, देखो. The condition precedent for claiming the benefit of 54F is that the capital gains realized from sale should have been invested in purchasing a house or constructing a house within the stipulated period. If the assessee has invested the money in the construction of a residential house merely because the construction was not completed in all aspects and possession could not be taken within the stipulated period, would not this entitle him from claiming exemption. अच्छा, यहां तो possession भी नहीं लिया. In fact, in this case, the assessee, अच्छा इस केस में ले लिया था, वो कहते हैं अगर वो possession भी नहीं लिया, doesn't matter, इस केस में ले भी लिया था, and is living in the said premises despite the pendency of flooring work, electricity work, fitting of door and window shutters. Therefore, the assessee is entitled in respect of amount invested in construction within the time period. यानी हम बात कर रहे हैं completion in all respects नहीं है, major हो जाना चाहिए. पर हाँ, अगर कल को तुम बोलो जी दीवारें खड़ी हो गई हैं प्लस छत भी नहीं डली है, तो हम उसको कंप्लीट. सो इट डिपेंड्स अपॉन फैक्ट्स ऑफ ईच केस. ओके, नाउ ही सेज, अगर आपका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, इसको ना मैं डिटेल में भी नहीं पढ़ूंगा, 80 लाख का है और आपका सेलिंग प्राइस 60 लाख का है, हमें पता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अंडर सेक्शन 50C 80 का हो जाएगा. ठीक है. अब आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो इंडेक्स आ रहा है, लेट्स से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 50 आ रहा है, तो आपने इसमें से 50 माइनस करके 30 लाख का कैपिटल गेन आया. आपने क्या किया, 30 लाख का एक नया रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ले लिया और आपने यहां से 30 लाख एग्जेम्प्ट कर लिया. अब एओ देखो क्या कहता है, कहता है मैं तेरे को 50 माइनस 60 जो असली 10 लाख का प्रॉफिट तू दिखा रहा है ना, उतने का एग्जेम्पशन दूंगा यहां से. तेरे को जो यहां स्टैंप ड्यूटी, तो नोशनल है, ये कहां से कर दिया तूने, है ना, तो ये मैं तेरे को एग्जेम्पशन नहीं दूंगा. तो यहां मुद्दे की बात आई कि बोला गया भैया सुनो, ऐसा कुछ लॉ में नहीं लिखा है, जो कैपिटल गेन्स का अमाउंट है अगर उतना इन्वेस्ट कर दिया है तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी. वो अब तुमने सेलिंग प्राइस एक्चुअल से करा या जो नोशनल आपके हाथ में टैक्स लगा, तो एक बार आपने नोशनली टैक्स लगा दिया तो ये बात तो क्लियर होगी ना कि वो उसने कमाया ही है, तभी आपने टैक्स लगाया, तो कमाया है तो उसने इन्वेस्ट कर दिया उसको. नेक्स्ट, हिंदुस्तान लीवर वर्सेस DCIT. अब यहां क्या पॉइंट है, यहां कहते हैं आपको पता है EC के बॉन्ड 6 मंथ्स के अंदर अप्लाई करने होते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर. अब असेसी ने 6 महीने के अंदर पेमेंट कर दिया है, पेमेंट मेड, और उसके बैंक अकाउंट में आपको एंट्री भी दिख रहा है, पर अभी बॉन्ड्स इशू नहीं हुए हैं, बॉन्ड्स इशू नहीं हुए. तो अब मुझे बताओ, क्या हम असेसी को डिनाई कर दें एग्जेम्पशन? बॉन्ड इशू ना होना असेसी की कौन सी गलती है, उसने तो पे कर दिए. सो ऑब्वियसली दिस जजमेंट सेज, सो आई एम नॉट गोइंग टू गो, कैन नॉट बी डिनाइड मेयरली बिकॉज द बॉन्ड्स वर इशूड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स. आफ्टर द एक्सपायरी आपने पैसा स्पेंड कर दिया, ठीक है. अब एक फर्टिलाइजर सब्सिडी की बात कर रहे हैं, फर्टिलाइजर बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं. He says, would the sale of fertilizer bonds issued in lieu of government subsidy at a loss be treated as a business loss or a loss under capital gains? अब देखो छोटी छोटी बातें होती हैं, जब तक हम इनको समझे ना
तब तक बात नहीं बनती। अब अगर मुझे बताओ गवर्नमेंट सब्सिडी है, गवर्नमेंट सब्सिडी फर्टिलाइजर सब्सिडी दे रही है, तो आपको पता है ये बिजनेस की रिसीट होगी। अब गवर्नमेंट ने सपोज करो 20 लाख रुपए की सब्सिडी देनी थी, गवर्नमेंट के पास कैश नहीं है, उन्होंने क्या किया, इसके ल्यू में, इन ल्यू ऑफ 20 लाख रुपीज उन्होंने आपको बॉन्ड्स इशू कर दिए। तो बॉन्ड्स की वैल्यू 20 लाख है, अब वो आपकी बिजनेस की रिसीट में आया ही होगा। अब आपने कल को ये बॉन्ड्स बेच दिए, मार्केट में ट्रेडेबल है, और सपोज जब आपने ये बॉन्ड्स बेचे तो ये बॉन्ड्स बिक गए लेट से 19 लाख के, अब आपको लॉस हो गया 1 लाख का। अगर इसको हम कैपिटल लॉस मानेंगे तो रिस्ट्रिक्शन होगी, लॉन्ग टर्म लॉस कैन ओनली बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म गेन, शॉर्ट टर्म लॉस अगेंस्ट लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। और अगर बिजनेस लॉस मानेंगे तो बिजनेस के हेड से सेट ऑफ हो जाएगा, दैट इज द मोर फ्लेक्सिबल लॉस। तो एओ कहता है बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स का सेल तो कैपिटल एसेट है, तो ये तो कैपिटल गेन्स में जाएगा, कैपिटल लॉस हो जाएगा। असेसी कहता है यार ये गवर्नमेंट सब्सिडी थी तो ये बिजनेस का लॉस होना चाहिए। अब ये क्या कहते हैं जजमेंट, इसको एक बार थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेते हैं, आ सकता है। फर्टिलाइजर सब्सिडी गिवन टू द असेसी to compensate the loss on sale of fertilizers should be treated as business income of the assessor. Due to cash crunch, the government of India had discharged its dues by issue of fertilizer bonds. These bonds are saleable in the open market and prices of such bonds are varying. In this case also, assessee received fertilizer bonds in lieu of the subsidy which was sold at a loss in the open market. Since the subsidy would have been treated as a business receipt, the loss on sale of fertilizer bonds issued will also be allowed as a business loss. तो यहां हो गया हमारा चैप्टर खत्म। अब चलते हैं अगले चैप्टर पे, अदर सोर्सेज। चलिए वी स्टार्ट विद द चैप्टर ऑफ अदर सोर्सेज। अभी सबसे पहला केस लॉ इज ऑन अ सिंपल पॉइंट ऑफ 56(2)(10). अगर एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जिसके पास इक्विटी शेयर्स है बोनस शेयर मिल जाते हैं, तो क्या इज रिसीट ऑफ बोनस शेयर्स डीम्ड टू बी इनकम अंडर 56(2)(10)? क्योंकि रिमेंबर 56(2)(10) में लिखा था इफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज आर रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन तो वो इनकम में आता है। तो अभी मुद्दा आ गया कि एक बंदे को बोनस शेयर मिल गए, लेट से बोनस शेयर उसको मिल गए 50 लाख के वर्थ के, तो क्या वो उसकी इनकम होनी चाहिए? सो यहां पर मुद्दा क्या है वो मैं बता दिया हूं। कैन बोनस शेयर्स रिसीव्ड बाय शेयर होल्डर्स बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एज पर प्रोविजंस ऑफ 56(2)(10) एज दे आर रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन? नाउ हाउ डज वी नो इट शुड नॉट बी टैक्सेबल? देखो ये तो मुझे भी पता है ये टैक्सेबल नहीं होना चाहिए, बट इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? सो अब यहां पर जज साहब ने कैसे एक्सप्लेन करा, लेट अस अंडरस्टैंड। The issue of bonus shares by capitalization of reserves is merely a reallocation of the company's funds. See, as an equity shareholder, I already have a right to the profits of the company. अभी उन्होंने उन प्रॉफिट्स को, रिजर्व्स को कैपिटलाइज करके शेयर दे दिया, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा क्या दिया, इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन। देयर इज नो इनफ्लो ऑफ फ्रेश फंड्स और इंक्रीज इन कैपिटल एम्प्लॉयड विच रिमेन्स द सेम। Thus, there is no addition or alteration to the profit-making apparatus, and the total funds available with the company remain the same. On the other hand, when a shareholder gets bonus shares, the value of original shares held by him goes down, क्योंकि वो basically तो original shares के ऊपर divide हो जाता है उसका cost, and the market value as well as intrinsic value of the two shares put together will be the same or nearly the same as the value of original shares before the issue of the bonus shares. Thus, any profit derived by the assessee shareholder on account of receipt of bonus shares is adjusted by depreciation in the value of equity shares originally held by him, which might not always be the case actually. But the question is, when you are receiving bonus shares, are you receiving anything without consideration? उन्होंने explain उसको कर दिया कि वो ऐसा है कि जब बोनस शेयर आ रहा है तो कंपनी का प्रॉफिट तो वही रह रहा है। एज अ शेयर होल्डर मेरा भी तो कंपनी के प्रॉफिट में पहले भी उतना ही राइट था, तो अभी मेरे पास कोई नया तो कुछ आया नहीं है। Hence, the provisions of 56(2)(10) would not be attracted in the hands of the recipient on receipt of bonus shares. So, इसको explain करने का ढंग क्या है वो आप समझ लो, जिसको आप वहां पर लिख के आओगे। भाई कहने का मतलब यह है कि basically there is nothing new, no new income coming in the hands of the shareholder. It is only allocation of profits जिसमें उसका ownership पहले भी था,
एज शेयर्स नाउ, सो देयरफॉर, और वैसे भी जब बोनस शेयर्स बिकेंगे, जब उसके पास एक्चुअल कैश आएगा तो उस समय तो हम उसको कॉस्ट पे टैक्स लगा लेंगे, सॉरी सेलिंग प्राइस पे टैक्स लगाएंगे, कॉस्ट उसकी जीरो लेंगे, है कि नहीं? ओके, या दिस हैपन्स टू बी प्रोबेबली अ वेरी इंटरेस्टिंग केस लॉ। देखो सबसे पहली बात क्या है, शेयर एप्लीकेशन मनी की बात हो रही है। अब एज अ कंपनी अगर हम पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स निकालते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन इशू ऑफ शेयर्स, एंड ये बात है आफ्टर कमेंसमेंट, सो वी से आफ्टर कमेंसमेंट। मुझे बताओ क्या ये खर्चा माइनस होता है बेटा? क्या ये खर्चा माइनस होगा? नहीं होगा सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बिकॉज दिस इज एक्सपेंडिचर टू रेज द कैपिटल, देयरफॉर इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब एज्यूम करके चलते हैं पब्लिक इशू पे, सपोज करो मैं मोटा मोटा खर्चा लगा रहा हूं, सपोज करो 2 करोड़ का खर्चा हो गया। अब कंपनी के पास शेयर एप्लीकेशन मनी आ रहा है, सो द कंपनी इज गेटिंग शेयर एप्लीकेशन मनी एंड पेंडिंग द अलॉटमेंट, ये पैसा बैंक में जमा होगा, और उसके बाद अलॉटमेंट के बाद जो एक्सेस होगा वो रिफंड हो जाएगा, रिफंड, एक्सेस विल बी रिफंडेड। नाउ ये जो इंटरेस्ट इस पीरियड में कमा रहे हो आप, इंटरेस्ट, क्या ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा? तो इससे पहले बहुत सारे केस लॉस थे, हेंकल स्पिक इंडिया का भी था जो कहता था कौन से साल में जाएगा। हालांकि उस केस में क्या बोला गया था कि इफ द अलॉटमेंट पीरियड इज स्प्रेड ओवर 2 years, सो मे बी एप्लीकेशन आपके पास आई थी 1 मार्च को, अलॉटमेंट हुई लेट से 2 मई को, तो बस इतना बोला गया था कि इसको आप इस साल की इनकम, जब अलॉटमेंट प्रोसेस कंप्लीट होता है उस साल की इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज लोगे। अब ये जजमेंट बहुत इंटरेस्टिंग बात कहती है, कहते हैं बैंक में रखना इज नॉट अ वॉलंटरी एक्टिविटी, अपनी मन मर्जी से नहीं रख रहे हैं, इट इज पार्ट ऑफ द प्रोसीजर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एज कंटेम्पलेटेड बाय द स्टैट्यूट। तो फिर राइट टू अर्न इनकम मेरी मर्जी थोड़ा है, द इनकम इज जस्ट कमिंग टू मी एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस एंड इट इज रिलेटेड टू द इशू ऑफ शेयर्स, देयरफॉर इसको हम अदर सोर्सेज में नहीं लेके जाएंगे। कहता है ये इंटरेस्ट भी कैपिटलाइज करो, और खर्चा जो आपने यहां पर कमेंसमेंट के समय कैपिटलाइज करा था उसमें से माइनस कर लो। अब देखो फर्क कितना पड़ रहा है। अगर ये इंटरेस्ट बेटा, सपोज करो ये इंटरेस्ट बन रहा है 25 लाख रुपया, ये 25 लाख रुपए का इंटरेस्ट अगर अदर सोर्सेज में जाता है तो टैक्स लग रहा है, लेकिन अगर यहां से माइनस हो रहा है तो आपका कैपिटलाइज अमाउंट लेस हो रहा है, the cash in the form of savings and tax outflow will be benefited। तो यहां पर जाके एसएससी ने एक लॉजिकल बात रेज करी और वो बात सुप्रीम कोर्ट ने मान ली। तो श्री रामामूर्ति टेक प्राइवेट लिमिटेड का केस हम दिमाग में रखेंगे। The SSC company was statutorily required to keep share application money in a separate account till the allotment of shares. Part of the share application money would normally have to be returned to unsuccessful, and therefore the entire share application money would not ultimately be appropriated by the company. He says the interest earned was inextricably linked with the requirement of raising capital. यानी ये interest earning is not a voluntary activity कि चलो ब्याज कमाने में चलते हैं. It is linked to the applicable requirement of raising capital. अब देखो क्या बोलते हैं. Any surplus money deposited in the bank for the purpose of earning interest is liable to be taxed as other sources. Hence, the share application money was deposited with the bank not to earn interest, not to make additional income, but to comply with the statute. The interest accrued on such deposit is merely incidental. Moreover, the issue of shares relating to capital structure of the company and hence expenses incurred in connection are to be capitalized. Accordingly, accrued interest is not liable to be taxed as other sources. The same is eligible to be set off against public issue expenses जो हमने कैपिटलाइज करें. सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट, इसको आप मार्क कर लोगे. ओके, ये वाला पुराना हो गया, इसको हम छोड़ देते हैं, पुराना लैंड एक्विजिशन एक्ट के ऊपर. नाउ वी कम टू अ सेक्शन 222E. 222E, लोन और एडवांस. सो इफ आई लुक एट द सेक्शन, आई थिंक इट्स अ सिंपल केस ऑफ कि अगर हम बात करें कि आपने एक कंपनी विच इज अ कंपनी इन विच द पब्लिक इज
not substantially interested. A company which is a private limited company or a public limited company in which the public is not substantially interested, यानी अभी पब्लिक इशू नहीं निकाला, उसमें कोई शेयर होल्डर है जिसके पास ऑन द डेट ऑफ द लोन, मतलब इस कंपनी ने इसको कोई लोन या एडवांस दिया, लोन या एडवांस दिया, एडवांस लोन के साथ है, लोन और एडवांस दिया, और ये इस कंपनी का एक सब्सटैंशियल शेयर होल्डर है, 10 या उससे ज्यादा परसेंट है, चाहे लोन इसको दिया, इसके बेनिफिट के लिए दिया या इसके बिहाफ पे दिया, सो ऑन बेनिफिट ऑफ द शेयर होल्डर और ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर, तो इस शेयर होल्डर के हाथ में डीम्ड डिविडेंड बन जाता है। अगर लोन किसी ऐसी कंपनी को दिया, फर्म को दिया, जिसमें इस शेयर होल्डर का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है विच इज 20% और मोर शेयर इन प्रॉफिट एंड इधर का 10% है, तो ये लोन इस कंपनी कंसर्न के हाथ में डीम्ड डिविडेंड बन जाएगा। तो ये तो हो गया बेसिक सेक्शन। अब इसमें दो बातें जो हम करेंगे वो थी कि अगर जो लोन और एडवांस दिया गया बेटा इज इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ मनी लेंडिंग, वेयर मनी लेंडिंग इज अ सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस, यानी अगर आप मनी लेंडिंग कर रहे हो और आपने लोन दिया एज पर नॉर्मल रेट्स, यानी लेंडिंग का रेट भी है, इंटरेस्ट भी नॉर्मल ले रहे हो, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस भी, रीपेमेंट के कोई फायदा नहीं दिया आपने उस शेयर होल्डर को, जैसे आप थर्ड पार्टी को लोन देते हो वैसे ही आप इसको दे रहे हो, तो उस केस में शेयर होल्डर के हाथ में हम 222 नहीं लगाते थे। लेकिन अगर सब्सटैंशियल पार्ट नहीं है, इफ सब्सटैंशियल पार्ट इज नॉट मनी लेंडिंग, देन इवन इफ आपने पूरा ब्याज लिया उससे, नॉर्मल टर्म्स के हिसाब से करा, फिर भी वो डीम्ड डिविडेंड लोन बन जाएगा। एक तो ये बात होगी। तीसरी बात, चलो तीसरी पे तब आएंगे जब केस आएगा, पहले इसको कर ले। What are the tests for determining substantial part of the business of lending company for the purpose of application of exclusion? यानी कंपनी मनी लेंडिंग में सब्सटैंशियली है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? अब हो सकता है कंपनी का टोटल कैपिटल 50 लाख का है, जिसमें से मनी लेंडिंग में 20 लाख लगाया और बाकी आपने लगा दिया इनटू द मैन्युफैक्चरिंग पार्ट। लेकिन जब इनकम देखते हैं, लेट्स से द कंपनी इज अर्निंग अ टोटल इनकम ऑफ 15 lakhs, उसमें से 12 लाख मनी लेंडिंग से आ रहा, 3 लाख बाकी एक्टिविटी से आ रहा। सो डू आई से सब्सटैंशियल पार्ट इज बेस्ड ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और डू आई से सब्सटैंशियल पार्ट इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट अर्न, और डू आई इवन से एम्प्लॉइज? मनी लेंडिंग बिजनेस में 10 एम्प्लॉइज लगे हैं, दूसरे वाले में 50 लग गए, कैसे माने सब्सटैंशियल पार्ट? सो इस इज percentage of turnover in relation to the whole, also the percentage of profit in relation to the whole, and sometimes even the percentage of manpower. तो मैं तीनों बातें लिख रहा हूं। Used for a particular part of the business in relation to the total workforce would be required to be taken into consideration for determining substantial part. The capital employed for a specific division in comparison to the total capital employed, एक और आ गया, capital employed, would also be relevant to determine whether the part of business constitute. So कोई एक टेस्ट नहीं बोला जा रहा है, कोई एक टेस्ट नहीं बोला जा रहा है, यहां पर बोला जा रहा है कि सब कुछ देखिए, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस से डिसाइड कीजिए, इज मनी लेंडिंग अ सब्सटैंशियल पार्ट? इफ इट इज, देन ऑफ कोर्स उसको एक्सक्लूड कर देंगे, राइट? नाउ अगेन कंटिन्यूइंग ऑन 220, कैन रिपेयर एंड रेनोवेशन एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय अ कंपनी in respect of premises leased out by a shareholder having substantial interest in the company be deemed as deemed dividend? चलो अब देखो इंटरेस्टिंग सी बात क्या कर रहे हैं कि एक सब्सटैंशियल शेयर होल्डर है, तो लेट्स से एक्स ने, एक्स लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड ले लेते हैं, इसका 10% शेयर है, इनको इसने लैंड लीज पे दिया, लैंड ऑन लीज, और इसका लीज रेंट आ रहा है। अब कंपनी ने इस पे कोई रिपेयर खर्चा कर दिया, देखो लैंड भी हो सकता है, चलिए बिल्डिंग प्लस लैंड ऑन लीज दे दिया, कोई रिपेयर एक्सपेंसेस कर दिए। अब एओ कहता है ये जो रिपेयर एक्सपेंस करे हैं आपने, ये बेसिकली इज अ लोन और एडवांस, आपने शेयर होल्डर को दिया और इसके ऊपर मैं डीम्ड डिविडेंड लगा दूंगा, यानी जितना रिपेयर का खर्चा तुम करे हो मैं शेयर होल्डर के हाथ में डीम्ड डिविडेंड पे टैक्स लगा रहा हूं। अब शेयर होल्डर कहता है यार ये लोन कैसे हुआ? मैंने बिल्डिंग लीज करी है, एज अ लेसी दे आर इनकरिंग एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयर, दैट इज एक्सपेंडिचर फॉर देयर बिजनेस, मेरे को थोड़े दे रहे हैं। ये कहता है क्यों? तेरी बिल्डिंग पर है तो तेरे को तो फायदा हो ही जाएगा, बिकॉज लीज के बाद तो बिल्डिंग तेरी हो जाएगी।
तो अगर देखें इसकी सोच क्या हो रही है, he says the expenditure incurred by virtue of repairs and renovation on the premises cannot be brought within the definition of advance or loan given to the shareholder. It cannot be treated as payment by the company on behalf of the shareholder or for the benefit of the shareholder. Actually यहां पर बात आ रही है on behalf of the shareholder or for the benefit of the shareholder. ये वो कह रहा है कि ये आपने रिपेयर का खर्चा ठेकेदार को दिया है पर इसका बेनिफिट तो उसको हो रहा है, सो ऑन बिहाफ फॉर द बेनिफिट ऑफ द शेयर होल्डर हो गया, तो इस वजह से इसको मैं डीम डिविडेंड. बट ही इज नॉट लुकिंग एट द वर्ड्स एडवांस और लोन. दिस इज नॉट एडवांस, दिस इज नॉट लोन. Accordingly, repair and renovation expenses in respect of premises owned by the shareholder having substantial interest and occupied by the company cannot be treated as deemed dividend. ये सारे केस लॉज मैंने रेगुलर कोर्स में करवाए हुए हैं. लाइक आई सेड ओवर हियर हम उनको एक बार फटाफट एक जगह देख रहे हैं. Now he says, can the loan or advance given to a shareholder by the company in return for an advantage conferred on the company by the shareholder be deemed as dividend? See, the very definition of loan and advance. Now, advance can also mean trade advances. ऐसा भी तो हो सकता है कि जो शेयर होल्डर है वो प्रोप्राइटरी कंसर्न भी चलाता है और सपोज करो वो कंपनी को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है और ये जो शेयर होल्डर है इस कंपनी में शेयर होल्डर भी है 10% का, यानी सब्सटैंशियल शेयर होल्डर भी है और खुद का प्रोप्राइटरी कंसर्न भी चला रहा है, रॉ मटेरियल भी दे रहा है. अब कंपनी ने इसको रॉ मटेरियल के लिए एडवांस दे दिया तो क्या ये एडवांस डीम डिविडेंड के अंदर आ जाएगा? तो आई थिंक गवर्नमेंट ने बड़ी बार क्लियर कर दिया, तुम्हें भी क्लियर होगा कि ट्रेड एडवांसेस आर नॉट कवर्ड है. सो लोन एंड एडवांस मींस एडवांस मस्ट बी इन द नेचर ऑफ लोन. तो वो ये बोल रहा है कि अगर कंपनी कुछ भी पैसा दे रही है टू अ शेयर होल्डर पर वो कुछ शेयर होल्डर कर रहा है उसके बदले में दे रही है तो इसको हम लोन और एडवांस के दायरे में नहीं लाएंगे, यानी 222E को इसमें नहीं लगाएंगे. सो लेट अस रीड दैट. ही सेज द फ्रेज बाय वे ऑफ एडवांस और लोन अपीयरिंग इन 222E must be considered to mean those advances or loans which a shareholder enjoys simply on account of being a person who is the beneficial owner of shares. In case such loan or advance is given to the shareholder as a consequence of any further consideration which is beneficial to the company received from such shareholder, such advance or loan cannot be deemed as dividend within the meaning of this act. Thus, only gratuitous without any particular return given by the company, मतलब आपने लोन दिया आगे से कुछ नहीं मिला कंपनी को, शेयर होल्डर जो है कोई सर्विस भी नहीं दे रहा, only gratuitous loans or advances would come within the purview of section 222E, but not cases where loan or advance is given in return for an advantage conferred upon the company by a shareholder. और ये बहुत बार बहुत डिटेल में केसेस आ चुके हैं. एक और लो, would the provisions of deemed dividend under 222E be attracted in respect of financial transactions entered into normal course of business? यानी ट्रेड एडवांसेस की बात कर रहा हूं जो मैंने अभी आपको करवाया. नहीं, I think we've said that. So he says the provisions would not apply in case of advance made in the course of assess's business as a trading transaction. Okay, now we come to winnings from lottery. I think वो केस था एक बड़ा इंटरेस्टिंग था कि एक एजेंट था लॉटरी का और उसके पास 100 लॉटरी टिकट्स थी जिसमें से 90 बिकी. बड़ा दुखी था कि 10 रह गई. हुआ क्या, उन 10 में से एक पे प्राइज निकला 1 करोड़ का. अभी खुशी का तो सीमा नहीं है, पर अब वो कहता है कि ये जो टिकट थी वो मेरा स्टॉक इन ट्रेड थी और कहता है कि ये वाला मेरा जो पैसा आ रहा प्राइस ये मेरी लॉटरी इनकम नहीं है, स्पेशल इनकम नहीं है, तो नॉर्मल बिजनेस इनकम है और इसमें से मेरे बाकी खर्चे माइनस हो जाने चाहिए बिकॉज ये मेरी स्टॉक इन ट्रेड पे निकला है. तो बहुत देर पहले एक जजमेंट आई थी जिसने कहा था हाँ हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है, ये तो तेरा स्टॉक इन ट्रेड है. बाद में उस जजमेंट को ओवररूल करने के लिए बहुत और जजमेंट्स आ गई एंड राइटली सो, बिकॉज सी हेड ऑफ इनकम जहां मर्जी ले जाओ, इसके लिए एक स्पेशल सेक्शन है 115BB which talks about taxability of winnings from lotteries and that is taxable at the rate of 30% irrespective of the head under which the income falls. तो इसको आप बिजनेस इनकम में नहीं लेके जाओगे और इसके ऊपर TDS भी कटेगा 194B में और इनकम टैक्सेबल भी होगी एट स्पेशल रेट. सो इट डजंट मैटर विच हेड यू टेक इट अंडर.
चलिए, नाउ वी कम टू असेसमेंट्स ऑफ वेरियस एंटिटीज. He says ITO वर्सेस वेंकटेश प्रेमिसेस कोऑपरेटिव सोसाइटी 2018 सुप्रीम कोर्ट का है. And it says are non-occupancy charges, transfer charges, common amenity fund charges received by a cooperative society from its members exempt on the basis of doctrine of mutuality. Now mutuality मैंने आपको बिजनेस एड में पूरा डिटेल में करवाया था, और mutuality is उसकी कंडीशंस पूरी होती है when you are not doing business, then any income earned from the members is exempt on the concept of mutuality. अभी कह रहा है non-occupancy charges. So transfer fees, common amenity fund charges received by societies from its members exempt. Yes, क्योंकि members से जो भी आ रहा है, जैसे क्लब्स हैं, सोशल क्लब्स हैं, आप वहां सब्सक्रिप्शन फीस देते हैं, आप वहां खाने का पैसा देते हैं, कुछ सरप्लस बच जाता है सोसाइटी के पास, क्लब के पास, assuming it satisfies all the conditions of a mutual concern, which means only the contributors are the beneficiaries. जो लोग पैसा दे रहे हैं सिर्फ बेनिफिट उनको मिल रहा है, बिजनेस नहीं हो रहा. हाँ, म्यूचुअल कंसर्न एक बार बन गई और उन्होंने कोई आउटसाइडर से पैसा कमाया तो सिर्फ आउटसाइडर वाला पैसा टैक्सेबल होता है. तो अगर एक क्लब है, म्यूचुअल कंसर्न है, उनके पास सरप्लस पैसा था, बैंक में डाल दिया, उससे इंटरेस्ट आ रहा है, वो इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा, पर जो मेंबर से कमा रहे हैं वो नहीं होगा. That also includes there's a judgment of Supreme Court in CID versus Chelmsford Club. Chelmsford Club की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने एनुअल वैल्यू ऑफ द क्लब हाउस बिल्डिंग को भी एग्जेम्प्ट करा था. जैसे रूम रेंट्स लेते हैं अपने मेंबर से, वो भी एग्जेम्प्ट होता है. फिर एक हाउसिंग सोसाइटी का केस आया था जहां पर यह बोला गया था कि एक सोसाइटी है, म्यूचुअल कंसर्न है, और उसमें हर मेंबर कुछ पैसा देता है कंट्रीब्यूट करने के लिए. रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस आर म्यूचुअल कंसर्न्स, ये इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा. पर इस सोसाइटी के रूल्स के हिसाब से अगर इस बंदे के पास फ्लैट है और ये आगे बी को बेच रहा है, सेल कर रहा है, तो जो ये प्रॉफिट कमा रहा है उसका 20% क्लब को भी लेना है. सपोज करो तो एओ कहता है ये 20% तो तेरे को जो प्रॉफिट आया वो ए से नहीं आया, बी से आया, एक्स्ट्रा पैसा तो बी ने दिया, एंड बी इज नॉट अ मेंबर, तो ये तो टैक्सेबल होना चाहिए. पर यहां पर भी जजमेंट थी जिसने बोला था कि बी भी प्रोस्पेक्टिव मेंबर है, नया मेंबर तो बी बन रहा है, तो तुम्हें पुराने मेंबर से आया या नए मेंबर से आया तो मेंबर से, तो ये भी एग्जाम्प्ट है. तो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी इज ट्रीटेड लिबरली, और ये भी एग्जाम्प्ट होगा. अकॉर्डिंगली ट्रांसफर चार्जेस, नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस, कॉमन एमेनिटी फंड चार्जेस एंड अदर चार्जेस रिसीव्ड फ्रॉम इट्स मेंबर्स आर एग्जाम्प्ट ओइंग टू द एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी. चलिए अगला आते हैं. एक चीज बताइए, एओपी का बेसिक, व्हाट इज द बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एओपी? एओपी में क्या होना चाहिए? एक कॉमन पर्पस होना चाहिए, बिजनेस मोटिव होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए. अगर एक पर्सन की डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी उसके लेट से लीगल हेयर्स को मिल गई, और सपोज ये प्रॉपर्टी कल को सेल हो गई या कंपल्सरली एक्वायर हो गई, तो जो इनकम हो रही है वो हर एक के अलग अलग हैंड्स में जाएगा या एज कलेक्टिवली एओपी के हैंड में जाएगा? फिर क्या फर्क पड़ता है? अरे अलग अलग हैंड्स में जाएगा तो स्लैब का बेनिफिट मिल जाएगा, एओपी को जाएगा तो आपको पता है 1% हो जाएगा. तो एओपी नए नए तरीके ढूंढ रहा है टैक्स बढ़ाने के. तो यहां पर क्या बोला गया? एओपी का बेसिक इंग्रेडिएंट बेटा इज प्रॉफिट मोटिव, कॉमन पर्पस. तो ये जजमेंट आप लोग याद रखोगे, इसका नाम याद कर लो. Where the land inherited by three brothers is compulsorily acquired by the state government, would the resultant capital gains be assessed in the status of AOP or in their individual status? तो यहां पर बोल दिया गया है, it is not a case where any AOP was formed by violation of the three brothers. Further, even the income earned in the form of interest is not because of any business venture of the three assessees, but as a result of an act of the government in compulsory acquiring the land. The basic test to be satisfied for making assessment in the status of AOP is absent in this case, which is profit motive. They are coming together for a profit motive. Hence, the income from asset inherited is taxable in their individual hands and not in the hands of the AOP. चलिए, जॉइंट सीआईडी वर्सेस रोल्टा इंडिया लिमिटेड अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट 2011. मुझे बताइए क्या अगर आपको मैट के हिसाब से टैक्स पे करना है, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स कंपनी के केस में 115 JB, तो क्या आपको
मैट का टैक्स ना पे करने पे 234B और 234C का इंटरेस्ट भी लगेगा. विल दैट बी एप्लीकेबल? विल द इंटरेस्ट फॉर लेट पेमेंट ऑफ टैक्स एज पर 115JB ऑल्सो अट्रैक्ट 234B and C? Oh yes. Oh yes, absolutely. I think 115JB 5 में हमने बात करी हुई है. Shall apply to every assessee being a company. Section 115JB is a self-contained code pertaining to MAT, and by virtue of subsection 5 thereof, the liability for payment of advance tax would be attracted. Therefore, if a company defaults in payment of advance tax, it will be liable to pay interest under 234B and C. Okay. ये एक और इंटरेस्टिंग केस है, चलो ये भी बता देता हूं तुम्हें. देखो, जब हम सारे केस कर रहे हैं, पॉइंट्स सी अगेन, टू अप्रिशिएट दिस केस लॉज, योर लॉ शुड बी क्लियर. यहां मैं लॉ सिखा नहीं रहा हूं, यहां पर इन केस लॉज के बारे में लॉ बता रहा हूं. सो अब क्या हुआ, लेट से एक बैंक है और एक क्लब है. अब बैंक इस क्लब का मेंबर है. अब क्लब के पास जो मेंबर्स, और भी मेंबर्स हैं भाई, बहुत सारे मेंबर्स हैं. अब जो मेंबर्स से पैसा कमाते हैं वो तो म्यूचुअलिटी के कॉन्सेप्ट में एग्जेम्प्ट हो जाता है. क्लियर बात है, म्यूचुअलिटी है, अभी तो कराया. अब देखो शातिर दिमाग क्या है कि क्लब के पास सरप्लस फंड्स थे, उन्होंने बैंक में जमा करा दिया और बैंक ने इंटरेस्ट दे दिया. अब क्लब कहता है ये इंटरेस्ट तो मेंबर से आया क्योंकि बैंक मेंबर है हमारा, ये तो म्यूचुअलिटी में एग्जेम्प्ट है बिकॉज एनी इनकम अर्न्ड फ्रॉम मेंबर्स इज एग्जेम्प्ट. प्रोसेसिंग ऑफिसर कहता है यहां देखो आपकी नहीं चलेगी, यहां मेरी चलेगी. ऑब्वियसली द money coming from members should be as members. This is not as member. This is interest as a bank they are paying you. That is from outsiders. So would interest earned on surplus funds of a club deposited with institutional members satisfy the principle of mutuality to escape taxability? No. No. Interest earned from investments of surplus funds in the form of fixed deposits with institutional investors or members does not satisfy the principle of mutuality and hence cannot be claimed as exempt. On this ground, the interest earned is therefore taxable. Okay, this is a good one. ये वो वाला है जो मैंने आपको भी बताया. Can transfer fees received by a cooperative society from its incoming member and outgoing member be exempt on the ground of mutuality? तो वो A और B का एग्जाम्पल बताया था अभी आपको. हाँ, आई थिंक आई रब्ड इट. हाँ, A और B का एग्जाम्पल बताया मैंने. भाई एक एग्जिस्टिंग मेंबर नए मेंबर को बेच रहा है तो वो कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी कैन हैव के अंदर आ जाएगा. सो इज नॉट लायबल ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी सिंस द प्रेडोमिनेंट एक्टिविटी इज मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर्टी एंड देयर इज नो ट्रेडिंग बिजनेस. ओके ओके. CIT वर्सेस अनिल हार्डवेयर स्टोर. अच्छा एक बताओ, जब हम बात करते हैं 40B का, अभी आपको असेसमेंट ऑफ फर्म्स में लेके जा रहा हूं. हमें पता है सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन का डिडक्शन मिलता है इफ पेड टू अ वर्किंग पार्टनर एंड इट मस्ट बी ऑथोराइज्ड बाय द डीड. यानी पार्टनरशिप डीड उसको ऑथोराइज करेगा. सो अगर पार्टनरशिप डीड में कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं बताया, ये बोला भी हम पार्टनर्स को दे देंगे एज पर म्यूचुअल डिस्कशन, मतलब पार्टनरशिप डीड में लिख दिया भाई हम पार्टनर्स आपस में डिसाइड करके सैलरी का डिडक्शन ले लेंगे. सो डज दैट मीन दैट द पार्टनरशिप डीड इज ऑथराइजिंग इट, या पार्टनरशिप डीड में कोई स्पेसिफिक मेथड देना जरूरी है ऑफ हाउ टू कैलकुलेट? क्या था? तो यहां पर आपको याद होगा, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. इन अ केस where the partnership deeds does not specify the remuneration payable to each individual working partner but lays down the manner of fixing the remuneration. हाँ, अगर ये लिख दिया कि भाई it will be based on 5% of the profits, something like that, would the assessee firm be entitled to deduction in respect of remuneration paid to partners? यानी एग्जैक्ट नहीं लिखा कि 1 लाख 2 लाख 3 लाख देंगे, बोल दिया will be 5% of profits shared equally amongst partners. तो मेथड बता दिया, अमाउंट नहीं बताया. एक है बताया ही कुछ नहीं. So he says the manner of fixing the remuneration has been specified in the deed. In a given year, the partners may decide to invest certain amounts of the profits into other ventures and receive less remuneration than which is permissible under the deed. But there is nothing which debars them from claiming the maximum amount of remuneration payable
in terms of the partnership deed. The method of remuneration having been laid down, the assessee firm is entitled to deduct remuneration paid to partners under 40B5. तो method बता दिया, maybe 5% of the profit, or it could be any other method of calculation stated over there. Then it is method is given that is authorized by the deed. पर अगर ये लिख दिया कि हम आज पर mutual discussion कर लेंगे, that is not going to be authorized by the deed और उसका आपको deduction नहीं मिलेगा. Okay, now we come to what we call tonnage tax. Tonnage tax is a presumptive tax. भी अगर आपके पास अपनी ships हैं, उसके tonnage capacity के ऊपर एक deemed income निकल आता है. ये मुद्दा कह रहा है कि अगर आपने कुछ ships own नहीं करते हो और कुछ ships के अंदर आप कुछ चार्टर ले लेते हो स्पेस का, तो क्या टनेज टैक्स का जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम है उस शिप पे भी लगेगा जो आपके नाम पे नहीं है पर आपने सिर्फ हायर पे लिया. तो दिस इज कैन इनकम डिराइव बाय एन इंडियन शिपिंग कंपनी फ्रॉम स्लॉट चार्टर अरेंजमेंट्स इन अदर शिप्स बी computed applying the special provisions under chapter 12G of the Income Tax Act relating to tonnage tax in spite of non-fulfillment of the condition of holding valid certificate in respect of such ships. Because one of the conditions of course is कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए नेट टनेज कैपेसिटी दिखाने का. तो यहां लिखा गया है द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ सर्टिफिकेट वुड नॉट अप्लाई व्हेन द एंटायर शिप इज नॉट चार्टर्ड एंड द अरेंजमेंट परटेन्स ओनली टू परचेज ऑफ स्लॉट चार्टर. द लीगल फिक्शन क्रिएटेड बाय 115VG is to be given proper meaning. Accordingly, income from slot charter arrangements in other ships can be computed applying the special provisions of Chapter 12G. तो सिंपल सी बात है, शिप आपका अपना है, उसका नेट टनेज कैपेसिटी लेके आप इनकम निकाल सकते हैं. आपका नहीं है, स्लॉट चार्टर करा, आपके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है, बट स्टिल यू कैन यूज द बेनिफिट ऑफ 115VG. Now, CIT versus Metal and Chromium Platter Private Limited. अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है. अभी इसमें अगर हम बात करें वी नो 115JB सबसेक्शन 2 में हमें ये बोला गया है कि कुछ लिस्ट है जो आप ऐड और माइनस करोगे, यानी आप प्रॉफिट एज पर पीएनएल लोगे, प्रॉफिट एज पर पीएनएल, and you will only make the pluses and minuses as prescribed in explanation to 115JB. लेकिन 115JB 5 कहता है कि other provisions of the act will apply, which means जैसे हमने बात करी एडवांस टैक्स देना है, इंटरेस्ट लगेगा 234 BC का, एडवांस टैक्स नहीं पे करा तो ऑल दोज विल बी एप्लीकेबल. अब हुआ क्या, एक कंपनी ने कुछ कैपिटल गेन्स लिया हुआ और उन्होंने इनकम टैक्स में जब टोटल इनकम निकाल रहे हैं, टोटल इनकम निकालते समय उन्होंने कैपिटल गेन्स में से 54 EC का एग्जेम्पशन लिया. अब जब मैट का बुक प्रॉफिट निकालने की बारी आई, वो कहते हैं ये कैपिटल गेन्स हमारा एग्जेम्प्ट है तो आप इसको मैट में से भी बाहर करो, रिमूव इट फ्रॉम मैट. तो एओ ने बोला अभी कैसे रिमूव कर दूं भाई, 115JB की एक्सप्लेनेशन में कहीं नहीं बोला इसको बाहर निकालने के लिए. अगर जैसे एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्टेड इनकम अंडर सेक्शन 10 है, खास लिखा हुआ है उसको निकालिए बाहर, 10AA को निकालने को नहीं बोला तो हम नहीं निकालते हैं, विच मीन्स 10AA इज सब्जेक्ट टू मैट. उसी तरीके से कैपिटल गेन्स को कहीं एग्जेम्प्टेड इनकम अंडर 54 EC को बाहर निकालने को नहीं बोला, विच बेसिकली मीन्स मैट लगेगा. अब इस जज साहब ने क्या बोला देखो, शुड कैपिटल गेन्स एग्जेम्प्ट अंडर EC which forms part of net profit in the statement of P&L be taken into account for calculation of tax on book profits. Now the judge says capital gains which forms part of net profit in the statement of P&L in respect of which exemption under EC is available while computing regular income or provisions of income tax should not be taken into account for calculation of book profit. Basically the judge sahab in this case is saying remove it. अब इसके नीचे ICAI ने लंबा चौड़ा हमें एक नोट दिया है. जस्ट टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, द CBDT has clarified that except for substitution of tax payable under the provisions and manner of computation of book profit, all other provisions relating to charge, definitions, recoveries, payment, assessment would apply in respect of 115JB. यानी बाकी सब अप्लाई करेगा. क्या क्या,
सिर्फ टैक्स पेबल निकालने के लिए जेबी को चेक कीजिए, कोई रिलेटिंग टू चार्ज है, डेफिनेशंस है, रिकवरीज है, वो अभी बताया, एडवांस टैक्स है, वो सब कुछ सेम रहेगा. देयरफॉर book profit for levy of MAT has to be computed in the manner laid down under 115JB by making adjustments as specified in the explanations contained therein. The net profit as per balance sheet to the net profit as per balance sheet. This implies that exemptions and deductions available under the regular provisions of the Act would not be available unless expressly provided for. सही बात है यार, यही तो हमने सीखा है. For example, income exempt under section 10, 11 and 12 have to be deducted while computing book profits if credited to the P&L account. Therefore, it appears that the intent of subsection 5 is to make applicable other provisions like payment of advance tax interest, filing of returns, penalty fees, etc. to cases where tax is computed under 115JB. The Madras High Court, however, in this case interpreted subsection 5 of 115JB to also permit adjustment for exemption EC while computing MAT, even though the same is not expressly provided. Now, I'm not very sure that this judgment is entirely correct. I'm sure इसके बाद amendment या overrule आ जाएगा, but आप लोग फिर भी याद रखोगे, इसको प्रैक्टिकल में करके नहीं आओगे. बट हाँ, अगर पूछ लिया भाई क्या 54 का एग्जेम्पशन मिलेगा और मैट से बाहर होगा, तो ये वाला आप नाम याद कर लो, इसको हम वहां पर कोट करके आएंगे. मेटल एंड क्रोमियम प्लैटर प्राइवेट लिमिटेड, CIT, मद्रास हाई कोर्ट. ठीक है जी, क्लियर है बात? हाँ सर क्या ये जजमेंट ऐसे जज साहब ने कैसे दे दिया? अरे जज साहब को जो 115JB 5 समझ में आया उन्होंने बोल दिया. अगर जज साहब को ये समझ में आया, अगर 5-7 और जज साहबों को समझ में आ गया, तो या तो एक्ट में अमेंडमेंट आके जजमेंट्स को ओवररूल कर दिया जाएगा, या जजमेंट को अडॉप्ट करके एक्ट बदल दिया जाएगा. हु नोज, दो आई एम श्योर दिस विल बी ओवररूल्ड. तो चलिए, let us now continue with the case laws on the chapter of TDS, TCS. Very important chapter, very important case laws. पर ये हमने सारे डिटेल में करे भी हुए हैं. अब सबसे पहला वाला जो आता है ITC लिमिटेड, आई थिंक अभी तक बहुत फेमस हो चुका है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा. अब तो ये सेटल्ड पॉइंट हो चुका है. एज अ कस्टमर अगर मैं बिल में टिप ऐड करके होटल को दे दूं और होटल बाद में वो अपने एम्प्लॉइज को दे, तो क्या इस पे होटल को TDS काटना है टिप पे? बिकॉज इज इट पेमेंट बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय कवर्ड बाय 192? आई थिंक बात बड़ी क्लियर है कि क्लाइंट ने होटल में जो आया खाना खाने, उसने टिप वेटर को दी है थ्रू द होटल. यू कैन नॉट कॉल द टिप्स कलेक्टेड फ्रॉम द क्लाइंट्स एंड पेड टू द एम्प्लॉइज एज सैलरी. तो इसके ऊपर TDS ऑब्वियसली 192 में नहीं कटेगा. So therefore the tips received by the employees could not be regarded as profits in lieu of salary under 17(3). The person who paid the tip was the customer and not the employer. Even though the amounts were with the employer, he had no title to the money because he had collected it on behalf of the employees, and it was held in a fiduciary capacity as trustee for and on behalf of the employees. Therefore, in such a case, no liability to deduct TDS under 192 arises, and hence the assessee company cannot be treated as assessee in default for non-deduction of tax at source on the amount of tips collected. तो ये तो हो गया एक. फिर एक और इंपॉर्टेंट, और ये भी सुप्रीम कोर्ट है, जापान एयरलाइंस है, सिंगापुर एयरलाइंस है. ये जो लैंडिंग एंड टेक ऑफ चार्जेस हैं एयरपोर्ट्स पे, जो लैंडिंग चार्जेस हैं, आर दोज रेंट फॉर लैंड या वो टोटल फैसिलिटीज में आते हैं? सो यहां पर आपको पता है दीज चार्जेस दे हैड सेड कैन नॉट बी ट्रीटेड एज रेंट विद इन द मीनिंग ऑफ 194I. बट ये कहां जाएंगे? विल दे अट्रैक्ट 194I और विल दे अट्रैक्ट 194C? तो वो कह रहा है आर लैंडिंग एंड पार्किंग चार्जेस पेड बाय एन एयरलाइन कंपनी टू एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन द नेचर ऑफ रेंट टू अट्रैक्ट डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर 194I. वो कह रहा है द चार्जेस फिक्स्ड बाय AI फॉर लैंडिंग ऑफ एंड टेक ऑफ services as well as for parking and are not use of land. Therefore, charges are for services and facilities offered in connection with the aircraft operation at the airport, which include providing of air traffic services, ground safety services, aeronautical communication facilities, installation, etc.
एंड दे विल नॉट बी कवर्ड बाय द यूज ऑफ लैंड, देयरफॉर 194I के रेंट की डेफिनेशन में नहीं आता। फिर सर ये जो स्टैंप वेंडर्स एसोसिएशन है, इनको अगर स्टैंप्स एट अ डिस्काउंट इश्यू हो जाते हैं, आजकल तो कई जगह ई संपर्क आ गया, बट चलिए यहां बात कर रहे हैं कि इफ यू इशूड द स्टैंप्स एट अ डिस्काउंट, क्या टीडीएस डिस्काउंट के अमाउंट पे डिडक्ट होगा अंडर 194H? इज डिस्काउंट कमीशन, क्या डिस्काउंट कमीशन होती है? तो इस पर्टिकुलर केस में आपने क्या बोला कि स्टैंप वेंडर्स जो है, लाइसेंस स्टैंप वेंडर्स टेक डिलीवरी ऑफ स्टैंप पेपर ऑन पेमेंट ऑफ फुल प्राइस लेस डिस्काउंट and they sell the stamp papers to retail customers. Neither of the two activities, namely buying from the government and selling to the customers, can be termed as service in the course of buying and selling of goods. So 194H में कमीशन आता है, कमीशन फॉर सर्विसेज फॉर बाइंग एंड सेलिंग गुड्स। तो क्या स्टैंप वेंडर्स गवर्नमेंट को सर्विस दे रहे हैं या गवर्नमेंट से गुड्स खरीद लें? तो यहां पर उसने बोला द डिस्काउंट ऑन परचेज ऑफ स्टैंप पेपर्स देयरफॉर डज नॉट फॉल विद इन द एक्सप्रेशन कमीशन और ब्रोकरेज to attract the provisions of TDS under 194H. Basically, it is a principal to principal dealing. One is buying, is a licensed stamp vendor. वो लाइसेंस है, उसको स्टैंप्स खरीद सकता है, डिस्काउंट पे खरीद लिए, उसको आप कमीशन नहीं मान सकते, सो इसको प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल मान के चल पड़े। देन इसे CIT वर्सेस कोटक सिक्योरिटीज, अगेन 2016 का केस है, सुप्रीम कोर्ट का है। अब क्या कह रहा है? कहता है जो स्टॉक एक्सचेंज पे, BSE पे जो ट्रांजैक्शंस होती हैं और BSE उसके चार्जेस लेते हैं, क्या वो चार्जेस जो हैं उस पर TDS कटेगा अंडर सेक्शन 194J? यानी क्या हम उनको फीस फॉर टेक्निकल सर्विस बोल रहे हैं? तो पहले इसको देखते हैं। वो ट्रांजैक्शंस पेड बाय द मेंबर्स, वो ट्रांजैक्शन चार्जेस पेड बाय द मेंबर्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज फॉर अवेलिंग फुली ऑटोमेटेड ऑनलाइन ट्रेडिंग फैसिलिटी, बीइंग अ फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द स्टॉक एक्सचेंज टू ऑल द मेंबर्स, constitute fees for technical service to attract the provisions of tax deduction at source under 194J. अब ये क्या बोल रहा है? The assessee company was engaged in the business of share broking. Being a member of the BSE, it made payments to stock exchange by way of transaction charges in respect of fully automated online trading facilities. अभी फीस फॉर टेक्निकल सर्विस में बोल दिया गया है that the fees for technical service has to be some service that is provided requiring skill, specialized skill. तो तभी पढ़ा रहा हूं, एक बार पढ़ लेते हैं। The services provided by the stock exchange are available to all members in respect of every transaction. There is nothing special, exclusive or customized in the service that is rendered by the stock exchange. A member who wants to conduct his daily business in the stock exchange has no option but to avail such service. Each and every transaction by a member involves the use of such service provided by the stock exchange, for which the member is required to pay transaction charge based on the transaction value. तो कहानी सुना रहे हैं कि भाई इसमें कोई यूनिकनेस नहीं है इस सर्विस में, ये तो रूटीन सर्विस है। टेक्निकल सर्विसेज लाइक मैनेजरियल कंसल्टेंसी आर इन द नेचर ऑफ स्पेशलाइज्ड सर्विस। ठीक है सर। मेड अवेलेबल बाय द सर्विस प्रोवाइडर टू केटर टू द स्पेशल नीड्स ऑफ द कस्टमर यूजर as may be felt necessary. It is above feature that would distinguish or identify a service provider from a facility offered. तो सबसे पहले 194J में जो आता है ना, वो फीस फॉर टेक्निकल सर्विस आ रहा है, और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस में ये नहीं आ रहा है। हाँ, अब हमने बात करी है यूज ऑफ डेटा, यूज ऑफ फैसिलिटीज, अपलिंकिंग चार्जेस एक्सेट्रा आर कवर्ड बाय द डेफिनेशन ऑफ रॉयल्टी। सो क्या इस पे TDS 194J में कटेगा बट एज रॉयल्टी? यस, क्योंकि ये अब उसमें आ चुका हुआ है। पर यहां पर सवाल पूछा है कि क्या ये फीस फॉर टेक्निकल सर्विस है, बट दे आर इन द नेचर ऑफ फैसिलिटीज प्रोवाइड बाय द स्टॉक एक्सचेंज, सच वुड देयरफॉर नॉट अट्रैक्ट द प्रोविजंस ऑफ TDS under 194J as fees for technical service, but they may be covered in the definition of royalty. Okay, next one. Is section 194A applicable in case of interest on fixed deposits in the name of Registrar General of High Court? तो कई बार केस चल रहा है, डिपॉजिट इज इन द नेम ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ हाई कोर्ट और उस पर इंटरेस्ट आ रहा है, तो क्या उसके ऊपर 194A लगेगा? तो ऑब्वियसली उन्होंने बोला है कि नहीं लगेगा।
यानी जो बैंक के पास रजिस्ट्रार जनरल के नाम पे डिपॉजिट पड़ा हुआ है उस पे जो इंटरेस्ट आ रहा है, बैंक इज नॉट लायबल टू डिडक्ट टीडीएस ऑन दैट। हाँ, जब फाइनल इंटरेस्ट जाता है टू द पर्सन हु इज अर्निंग इट, उसी पे टीडीएस 194A में कटेगा। तो कह रहा था एक्सप्रेशन पेई वुड मीन द रेसिपिएंट ऑफ इनकम whose account is maintained by the person paying interest. The registrar general is neither recipient of the amount credited to his account nor to interest accruing thereon. Therefore, he cannot be considered as payee for the purpose of 194A. In the absence of a payee, the machinery provisions for deduction of tax to his credit are ineffective. The credit by the bank in the name of registrar general would thus not attract provisions of 194A. CBDT ने accept कर लिया हुआ है that interest on FDRs made in the name of Registrar General of Court or the depositor of the fund on the direction of the court will not be subject to TDS till the matter is decided by the court. However, once the court decides the ownership of the money, फिर जो असली ओनर है उसके ऊपर जब इंटरेस्ट का पेमेंट होगा उस पे TDS 194A में लगेगा। ठीक है सर, ये जो सिम कार्ड्स होते हैं, देखो अभी क्या हो रहा है कि एक एयरटेल है और वो अपने सिम कार्ड्स एजेंट्स को दे देती हैं एट अ डिस्काउंट, और एजेंट्स आगे फुल प्राइस पे बेचते हैं। तो अगर 10 रुपए का है, सपोज एजेंट को आपने 5 रुपए में दे दिया, एजेंट ने 10 रुपए में दिया। अब पॉइंट ये है कि ये जो 5 रुपए है डिस्काउंट का, एमआरपी है 10 रुपए, एमआरपी पे एजेंट बेच रहा है, 5 रुपए पे एयरटेल ने सिम कार्ड बेच दिया। तो ये जो 5 रुपए है जो डिस्काउंट है, क्या इसको कमीशन मान ले? कमीशन मान ले। अभी हमने बात करी थी कि स्टैंप वेंडर्स ने क्या किया, स्टैंप पेपर खरीद लिया, अब इंडिपेंडेंट हो गए। दे आर नॉट प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स और बाइंग एंड सेलिंग फॉर समवन एल्स। वो खुद परचेज करके बेच रहे हैं, जो डिस्काउंट है दैट इज देयर प्रॉफिट। तो फिर यहां पर और वहां क्या फर्क है? यहां पर यह मान लिया गया कि जब सिम कार्ड बायर ने खरीदा, अल्टीमेट सर्विस तो एयरटेल से आएगी, तो फिर सिम कार्ड इन इटसेल्फ इज नॉट गुड्स। तो सिम कार्ड इन इटसेल्फ इज नॉट गुड्स। देयरफॉर जो सिम कार्ड का एजेंट है वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो इन्हीं की सर्विस बेच रहा है। देयरफॉर ये कमीशन मान लिया गया। तो पढ़ें जरा इसको। कैन डिस्काउंट गिवन ऑन सप्लाई ऑफ सिम कार्ड्स बाय टेलीकॉम कंपनी टू हिज डिस्ट्रीब्यूटर्स बी ट्रीटेड एज कमीशन? अब कहते हैं देयर इज नो सेल ऑफ गुड्स इन्वॉल्व एंड द एंटायर चार्जेस कलेक्टेड बाय द एसएससी टेलीकॉम कंपनी फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ सिम कार्ड्स और रिचार्ज कूपन्स वर ओनली फॉर रेंडरिंग सर्विस टू द अल्टीमेट कस्टमर्स। अंग्रेजी में वही बोल रहा बेटा कि जो पैसा यहां से आया वो इन्हीं को सर्विस देने के लिए है। The assessee was accountable to the subscribers for failure to render prompt service pursuant to the connections given by the distributor. Therefore, the distributor only acted as a middleman on behalf of the assessee for procuring and retaining customers, and consequently the discount given to him was within the meaning of commission on which TDS was deductible under 194A. तो हमने देखा स्टैंप वेंडर्स वाला गुड्स मान लिया, सिम कार्ड्स वाले को कमीशन माना, बिकॉज सिम कार्ड्स कैन नॉट बाय देमसेल्व्स डू एनीथिंग। सिम कार्ड बेचने से कुछ नहीं हो रहा, एयरटेल का सर्विस रेगुलरली जाएगा। लॉजिक समझ लो। अब कह रहे हैं जो मोबाइल टावर्स खड़े होते हैं भैया, अभी जब मोबाइल टावर्स खड़े करते हो तो उस एरिया का रेंट जाता है, मोबाइल टावर का रेंट जा रहा है, कुछ सर्विसेज भी हैं। अब इसको 194C माने या 194I माने, द रेंट फॉर मोबाइल टावर्स। सो नाउ द जजमेंट सेज कि ये जो मेन पर्पस यहां पर क्या है, आप अगर रेंट दे रहे हो, आप किसका दे रहे हो? यू आर गिविंग रेंट फॉर द टावर। सो इट इज द assessee owned a network of telecom towers and infrastructure services which were let out to major telecom operators in the country. तो एक बंदे ने टावर्स बनाए हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ, टेलीकॉम ऑपरेटर्स को लेट आउट कर रहा है। अब टेलीकॉम ऑपरेटर्स रेंट दे रहे हैं फॉर दोस टावर्स। Is the rent going for the plant and machinery or for the service? This is the question. So it says the infrastructure was given for the use of mobile operators. The towers were the neutral platform without which the mobile operators could not operate. Each mobile operator had to carry out this activity by necessarily renting premises and installing the same equipment.
The dominant intention was the use of equipment or machinery. The passive infrastructure and use of premises was only incidental. Hence, the tax to be deducted at 2% under 194I, which is plant and machinery wala, the rate applicable for payment for use of plant and machinery. Next, अगर एक घर को ओन्ड है, दो को ओनर्स है, तो 194I की लिमिट तो 240 की है. विल दैट बी एप्लीकेबल फॉर ईच को ओनर और फॉर द फुल हाउस? मतलब एज अ टेनेंट मैं अगर 240 और 240 पेमेंट कर रहा हूं, यानी एक घर के लिए 480 का पेमेंट कर रहा हूं, पर दो ओनर्स हैं, ऐसे तीन हो गए तो 240 उसका भी हो गया. तो क्या इस तरीके से एक तरीके से लिमिट डिवाइड होगी? क्या ये थोड़ा बहुत टैक्स मैनिपुलेशन हो रहा है? तो उसके बारे में जजमेंट क्या बता रही है? Since the share of each co-owner is definite and ascertainable, they cannot be assessed as an AOP. सेक्शन 26 में बोला हाउस प्रॉपर्टी में कि इनको आपको co-owners मानना पड़ेगा and each share of the co-owner will be treated separately. Therefore, it is not necessary that there should be a physical division of the property to attract the provisions of 26. In this case, since payment of rent is made to each co-owner by way of separate check and their share is definite, तो भैया द थ्रेशोल्ड लिमिट यानी 240 की बात हो रही है, हैज टू बी सेपरेटली फॉर ईच को-ओनर. तभी आप देखोगे शायद एक ही बिल्डिंग के 2-4 को-ओनर्स बना दिए जाते घर वाली, तो उसका लिमिट डिवाइड हो जाता है. कैन पेमेंट मेड बाय एन असेसी engaged in transportation of building material and transportation of goods to contractors for hiring dumpers be treated as rent for machinery? You know, to be honest, इन सारे केस लॉज में ना आप एक बात याद रखो, जैसे स्कूल की बात करते हैं, अगर एक स्कूल किसी स्कूल बस की किराए पे देता है, किसी बसेस को किराए पे लेता है, और फिर कॉन्ट्रैक्टर ड्राइवर उनके खुद के हैं, तो उन्होंने क्या किराए पे लिया? मशीनरी किराए पे ली. और अगर मशीनरी किराए पे ली फिर तो यार प्लांट एंड मशीनरी वाला 2% रेट लगेगा. लेकिन अगर स्कूल ने कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया, भाई आप सारी सर्विसेज भी दो, बच्चों को घर से पिकअप करो, स्कूल छोड़ो, वापस छोड़ के आओ, सारा आपका जिम्मेवारी, हम आपको इतना पैसा देते हैं. नाउ दैट बिकम्स अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट. सो फ्रॉम द फैक्ट्स ऑफ ईच केस आप देख लो. अब अगर मैंने ट्रक किराए पे लिए वो प्लांट एंड मशीनरी है, लेकिन अगर मैंने उसको आउटसोर्स कर दिया, भैया तू मेरे को 10 ट्रक लीज पे दे दे और पिकअप ड्रॉप यहां से सामान उधर छोड़ने तक का पूरा कॉन्ट्रैक्ट तेरा, तो इस पे 194C लग जाएगा. उसी तरीके से यहां पर आपने डंपर्स किराए पे लिए, अगर तो सिर्फ डंपर किराए पे लिए तो 194 आया. लेकिन अगर आपने उसको बोला भाई ये डंपर है, वहां से माल उठा के वहां छोड़ भी दे, तो ये 194C में आ जाएगा. सो दैट डिपेंड्स अपॉन फैक्ट्स ऑफ ईच केस. ओके, CIT वर्सेस VS डेम्पो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड. अब इसमें मुद्दा क्या आया है कि हमें पता है भाई जो नॉन रेजिडेंट शिपिंग कंपनीज होती हैं, अगर वो इंडिया आती हैं और यहाँ से कुछ गुड्स लेके बाहर जा रही होती हैं, तो यहाँ पर जो उनका फ्रेट होता है, जो डेमोराज चार्जेस होते हैं, उनका 7.5% इज द डीम्ड इनकम, और उसके ऊपर 40% रेट लगता है एज एप्लीकेबल टू फॉरेन कंपनी. ये लिखा है अंडर सेक्शन 172, एंड 172 इन इटसेल्फ इज अ कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ असेसमेंट, फुल एंड फाइनल होता है. तो अब ये पूछा जा रहा है कि जो पेमेंट इनको कर रहे हैं, क्या उनको अब 195 में भी TDS काटना है? तो यहां बोला जा रहा है नहीं, क्योंकि वो अपना टैक्स जमा करवा रहे हैं अंडर सेक्शन 172. तो एक बार इसको देख लेते हैं. सेक्शन 172 डीलिंग विद शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट कंटेन्स अ नॉन ऑब्स्टिनेट क्लॉज एंड अप्लाइज बोथ फॉर द पर्पज ऑफ लेवी and recovery of tax in the case of any ship carrying passengers, etc., belonging to or chartered by a non-resident and shipped at a port in India. There would be no obligation on the payer assessee to deduct tax at source under 195 on the payment of demurrage charges to the non-resident shipping company. तो इन पेमेंट के ऊपर जो बंदा पेमेंट कर रहा है इनको, उसके ऊपर उसको कोई TDS काटने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज कवर्ड बाय 172. ओके, अब आया 2011A, जो इंटरेस्ट लगता है फॉर डिले इन डिडक्शन और आफ्टर डिडक्शन डिले इन डिपॉजिट ऑफ TDS. क्या रहा है? क्या 2011A अट्रैक्ट होगा इवन इफ इट वाज अनइंटेंशनल, मतलब बोनाफाइड बिलीफ था दैट TDS वाज नॉट डिडक्टेबल. कहता भाई मुझे पूरा यकीन था TDS नहीं काटना है, ये तो बाद में AO ने मुझे कन्विंस कर दिया TDS काटना है, तो चलो मैं तुम्हें प्रूव कर रहा हूं कि भाई सच्ची मुच्ची मेरे को नहीं पता था, तो आप बताओ क्या मुझे फिर भी ब्याज लगेगा 2011 का? I'm sure you'll agree with me. Government will not be concerned with what was your intention.
Since the company had failed to deduct tax on payments made to its employees being Indian residents deputed to work in UK, Section 2011A is automatically attracted even if such non-deduction was due to bona fide relief that the tax is not deductible. The company is nevertheless liable to pay interest under 2011A. ठीक है सर। अब एक और आ रहा बड़ा इंटरेस्टिंग भाई, अगर हम इंसेंटिव्स देते हैं अपने स्टॉकिस्ट को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो कई कंपनीज हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, स्टॉकिस्ट को इंसेंटिव्स देती हैं जो टारगेट्स अचीव होते हैं, टर्नओवर बेस्ड इंसेंटिव्स हैं। तो क्या उसको अब हम कमीशन मान लें और क्या उस पर TDS 194H में कटेगा? सो स्टॉकिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, are they agents, and is that incentive commission covered by 194H, which means are they getting a commission for selling something on behalf of the principal? अब यहां पर उन्होंने माना that the relationship between the assessee and the distributors is that of principal and principal. भाई इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, उसका अपना बिजनेस है, मेरा अपना। हाँ, वो मेरा माल बेचता है और उस पर पैसा कमाता है, मैं उसको माल बेचता हूं, वो आगे बेचता है और पैसा कमाता है। इसमें कमीशन वाली बात नहीं आ रही है। सो वो कह रहा है द प्रोडक्ट्स वर फर्स्टली सोल्ड टू डिस्ट्रीब्यूटर्स हु इन टर्न रीसोल्ड देम इन द मार्केट। तो मैंने उसको बेचा, उसने आगे बेच दिया। नो सर्विस वाज ऑफर्ड बाय द असेसी टू देम एक्सेप्ट अ डिस्काउंट अंडर द प्रोडक्ट डिस्काउंट स्कीम टू बाय द गुड्स ऑफ द असेसी। तो डिस्काउंट पे बेचना हर बार कमीशन थोड़े हो सकता है। हमने बात करी एयरटेल वाला, वो समझ में आया क्योंकि वहां पर जो है एयरटेल को बाद में पूरा सप्लाई देना था, तो उस डिस्काउंट को कमीशन माना गया था। द स्टॉकिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स वर नॉट एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द एसएससी एंड मोस्ट ऑफ द क्रेडिट वाज बाय वे ऑफ गुड्स ऑन मीटिंग द सेल्स target, which could not be said to be a commission within the meaning of explanation to 194H. Accordingly, such payment would not attract tax at source. तो हमें क्या क्या समझ में आ रहा है भाई? सिर्फ एक एयरटेल के केस में, क्योंकि वो भी the nature of service is such कि सिम कार्ड्स could not be constituted as goods, क्योंकि बाद में एयरटेल was going to be responsible for the service. फिर कतार एयरवेज में भी वही वाली बात है भाई। अगर एक एयरलाइन ने अपने एजेंट्स को टिकट बेच दिया है एट अ डिस्काउंट और एजेंट्स आगे बेच रहे हैं, तो क्या इसको एयरटेल वाला रूल लगा के, बिकॉज अल्टीमेटली तो एयरलाइन ने सर्विस देनी है, तो क्या आप इसको कमीशन मान ले? सो अगर टिकट बेच दी आपने एजेंट को 40,000 रुपए की और एजेंट आगे 60,000 की बेच रहा है, तो क्या ये 20,000 रुपया कमीशन मान ले? समथिंग लाइक दी सिम कार्ड, बिकॉज यू आर एज एन एयरलाइन सेलिंग देम एट अ डिस्काउंट। अब यहां पर व्यू पॉइंट टेकन बाय लॉ अलग है। क्या कहते हैं? कहते हैं वो एजेंट अलग है, इंडिविजुअल एजेंट है और उसने टिकट आपसे डिस्काउंट पे खरीद लिया। अब यहां पर देखो थोड़ा बहुत जो थॉट प्रोसेस है वो एयरटेल और इसका सेम होना चाहिए था, पर यहां डिफरेंट है। देखो क्या कह रहे हैं, the difference between the published price and the minimum fixed commercial price cannot be taken as additional special commission in the hands of the agent, since the published price was the maximum price and the airline company had granted permission to the agents to sell tickets at a price lower than the published price. मतलब basically they are saying it's a principal to principal transaction और आपने उनको टिकट बेच दिया है और वो आगे बेच सकते हैं at a higher than the price at which they bought within the minimum or the maximum price. In order to deduct tax at source, the exact income in the hands of the agent must necessarily be ascertainable by the airline company. However, the airline company would have no information about the exact rate at which the tickets were ultimately sold by its agent, since the agents have discretion to sell the tickets at any rate between the minimum fixed commercial price and the published price. It would be unreasonable to expect the airline companies to get a feedback from its so many agents भी तुमने कितने कितने की बेची. Thus, tax was not deductible at source on the difference between the actual sale price and the minimum fixed price, even though the amount earned by the agent over and above the minimum fixed price will obviously be income in their hands. उनकी इनकम है, प्रॉफिट है, पर कमीशन नहीं है. अब यहां पर बोला जाता है कि भाई सिंगापुर एयरलाइंस वाले केस में बिलिंग एनालिसिस स्टेटमेंट क्लियरली इंडिकेटेड द एक्स्ट्रा कमीशन, यानी उन्होंने सिंगापुर एयरलाइंस में जब पूरा चेक करा तो वहां दिख रहा था भाई अल्टीमेटली उन्होंने आगे कितना का बेचा, डिटेल मिल गया.
in the form of special or supplementary commission that was paid to the travel agent with relevant to the deal code. Therefore, in that case, the High Court held that the supplementary commission in the hands of the agent was ascertainable by the airline company and hence the airline company was liable to deduct tax on the same. So ये मान लेते हैं कि जहां वो अमाउंट मिल रहा है, एक्स्ट्रा अमाउंट ओवर एंड अबव द परचेज प्राइस जो बेच रहे हैं और वो मिल रहा है, विच मीन्स आपने एक तरीके से उनको एक्स्ट्रा कमीशन अलाउ करा तो उसके ऊपर अब आप टीडीएस काटेंगे. फिर एक और सिमिलर केस क्या है, डायरेक्टर ऑफ प्रसार भारती, और यहां तो कंट्रोवर्सी भी है. यानी दूरदर्शन ने कुछ एजेंसीज को अपॉइंट करा और वो एजेंसीज एडवर्टाइजमेंट का पैसा कस्टमर से कलेक्ट कर रही हैं. सपोज करो 30 करोड़ रुपया कलेक्ट हुआ, इन एजेंसीज ने अपना लेट से 5 करोड़ रुपया रख लिया और 25 करोड़ रुपया दूरदर्शन को दे दिया. अब डिपार्टमेंट क्या बोलता है कि ये जो 5 करोड़ है ये कमीशन है, और अगर ये कमीशन है तो इसके ऊपर टीडीएस कटेगा. अब इस पे दो व्यूज आ रहे हैं. सीबीडीटी ने क्लैरिफाई कर दिया कि ये कमीशन नहीं है और ये 194H में नहीं आएगा, नहीं आएगा. और दूरदर्शन के केस में जज साहब ने बोला कि ये आएगा. और दोनों में क्या फर्क है एक बार चेक कर लेते हैं. देखो, आओ, लेट अस डू दैट. सो ही सेज as are the provisions of tax deduction at source under 194H attracted in respect of amount retained by accredited advertising agencies out of remittances of sale proceeds of airtime purchased from Doordarshan and sold to customers. So he says, यहां पर assessee agency ने क्या किया, to give minimum annual business of 6 lakhs to the assessee in a financial year and furnish bank guarantee for a sum of 3 lakhs. The agreement provided that the accredited agencies would retain 15% by way of commission out of the amount collected from customers and paid to the assessee. The agencies were to retain the commission earned and not to part with the same either directly or indirectly to any other person. In the relevant assessment year, the agencies retained 4.87 crore towards commission as per terms of the agreement. ठीक है. The definition of commission or brokerage under 194H is inclusive and covers any payment received or receivable directly or indirectly by a person acting on behalf of another person for the service rendered. अब यहां पर वर्ड आ रहा है acting on behalf of another person. So the question is, क्या ये दूरदर्शन के behalf पे काम कर रहे हैं या ये independent काम कर रहे हैं? अच्छा. The payment clause is free of ambiguity and the terms of the agreement indicate that both parties intended that the amount to be paid retained is in the nature of commission. यानी इस पर्टिकुलर केस में ये क्लियर हो गया कि दोनों पार्टीज इंटेंड कर रही हैं कि ये कमीशन है. इट इज फॉर दिस रीजन that the parties use the expression commission in the agreement. The relationship in question was a pure agency agreement because the agency acted on behalf of the assessee and the actions of the agency were binding on the assessee. Moreover, the agreement itself contained a clause for deduction of tax on the trade discount. यानी उनके agreement में लिखा है ये commission है basically. Such, therefore, the judge sahab says 194H is attracted. However, CBDT ने clarify करा that TDS under section 194H is not attracted on retentions by an advertising agency from payments remitted to television channels because the CBDT says they are acting independently. So what is the final analysis we say? हम कहते हैं अगर टेलीविजन चैनल्स एजेंट्स को पैसा दे रहे हैं और वो एजेंट सिर्फ एक चैनल के लिए 10 चैनल्स के लिए काम करते हैं तो वो इंडिपेंडेंट एजेंसीज है. उनको कमीशन नहीं बोलेंगे, उनका प्रॉफिट है, उस पर टीडीएस 194H में नहीं कटेगा. दूरदर्शन वाला केस स्पेसिफिक है, यानी उसी पर्टिकुलर एग्रीमेंट में लिखा था कि ये कमीशन है, इस वजह से हमने उस पर टीडीएस कटवाया. Is payment made to an overseas agent who does not perform any service in India liable for TDS? I think यार ये तो इसी सीरीज में हम 2-3 बार कर चुके हैं, तो नहीं है. With regard to the payment of commission, the agent did not act as an artist. चलिए, the assessee, an event management company, engaged in the service of agent to bring artists to India. The assessee company paid commission to overseas agent. The assessee company did not deduct tax at source on the commission paid. ठीक बात है, क्योंकि एजेंट तो बाहर है, सर्विस भी बाहर दे रहा है. ये कह रहे हैं वो सर्विस इंडिया में यूज हुई है.
He says the agent did not act as a performing artist or entertainer. He was concerned only with the service rendered outside India. Thus, income of the agent did not arise from the personal activities in contracting state of of the entertainer or artist. He only contacted the artist and negotiated with them for the performance in India in terms of the authority given by the SSE. Hence, the commission paid is not liable to tax in India. तो वो खुद इंडिया आया नहीं, उसकी कमीशन वॉज नॉट बेस्ड ऑन द आर्टिस्ट, उसने तो सिर्फ अरेंज करके भेज देते, तो उसकी सर्विस तो वहीं खत्म होगी, देयरफॉर वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। अब हम आते हैं 206C पे। ये मैंने पहले भी बताया, इंपॉर्टेंट है। स्क्रैप में क्या क्या आता है? स्क्रैप इज समथिंग विच इज डिफाइंड दैट इट कैनॉट बी यूजेबल एज सच, यानी कोई ऐसी चीज जिसको आप दोबारा एज सच यूज नहीं कर सकते। अब शिप एक बहुत बड़ी चीज है, शिप इज अ ह्यूज वेसल, उसमें से कई ऐसे पुर्जे निकलते हैं, पार्ट्स निकलते हैं विच कैन बी यूज्ड एज सच। तो क्या जब हम वो पार्ट्स बेच रहे हैं विच कैन बी यूज्ड एज सच, वो स्क्रैप है? क्योंकि अगर नहीं है तो फिर उस पर टैक्स कलेक्ट नहीं होगा, टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा। सो द एसएससी कंपनी वाज एंगेज इन शिप ब्रेकिंग एक्टिविटी, सोल्ड ओल्ड एंड यूज्ड प्लेट्स, वुड एक्सेट्रा। द एसएससी डिड नॉट collect tax at source on the sale of certain items which are old and used plates, non-excisable goods like wood, etc. The products obtained from the ship-breaking activities were finished products, which constituted sizable chunk of the production done by the shipbreakers. Such products, though commercially known as scrap, bolte scrap hai, were definitely not waste and scrap. The waste and scrap must be from manufacture or mechanical working of material which is definitely not usable as such because of breakage, cutting up, wear and tear. However, in this case, these items were usable as such and therefore do not fall in the definition of scrap. ठीक है सर। So, are the provisions of tax deduction at source under 194H attracted on payment made by the SSE Bank for services rendered by NFS, a network of shared ATMs in India? भाई 194H कमीशन है, यानी इसमें relationship between the SSE Bank and the National Financial Switch is not of agency but that of two independent bodies on principal to principal basis. Therefore, the provisions of 194H are not attracted on payment made by Corporation Bank, which issued the credit card for payment gateway services provided by NFS. तो इसके ऊपर आप TDS 194H में तो नहीं कटेगा। ठीक है सर।